college, graduation. Tell me a little about yourselves. Completed post-graduation. Completed post-graduation. Baki? Graduate. 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 Anyone in college? Yes. Yes. Quite a few. Which year? Sixth semester. Sixth semester. Third year. Third year. Sixth semester. Mostly final year? Yes, sir. Yes. Fourth Fourth semester. Both semester. Second year. Anyone from first year? Yes. आप क्या करते हो? मैम आप क्या करते हो? मैम अभी मेरा सिक्स फाइनल ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन. Sure. Nice. So, I'll give a brief introduction about myself. My name is Saima Khan. I have appeared for the Civil Services Examinations 2023 and secured a rank of 165. And my UPSC journey has started long back. ऐसा नहीं है कि overnight किया है मैंने. ये मेरा चौथा attempt था. So I have completed my sociology honors from St. Xavier's College, and so that was way back in 2017. And then I jumped into UPSC without any guidance, without any coaching, without any mentors, and relying on a lot of YouTube videos. खैर डिजिटल मार्केट है एक यूपीएससी का और मैंने काफ़ी उस पर रिलाई किया. एंड नीडलेस टू से आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छा काम करता है when you are overloaded with information कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ऐसे कर लो, and with no competitive environment. So मैं अकेले अपने घर में पढ़ा करती थी and कोई पैरामीटर नहीं था कि अपने आप को किसके साथ कंपेयर करूँ. मॉक्स दे रही हो तो खुद में ही खुश हो रही हो या खुद ही उदास हो रही हो. So I could not clear my two prelims. The first two prelims I was not able to clear. After that I joined here because I realized that Delhi Jana is not worth it. Delhi for me is a very crowded place जहाँ पे उतने serious candidates नहीं है but भीड़ बहुत है. आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा. And I think वो भीड़ बहुत self confidence को गिराता है. So for me, Calcutta was a very good thing. And I joined here and I appeared for my third attempt in which I cleared my prelims. And however, I missed my mains by 30 marks. तो 30 marks से मेरा mains उस साल छूटा. Then I took a break and then I started working. I got associated with the institute. मैं admin work देखती थी, students से interact करती थी. आपके पहले काफ़ी batches से interact किए थे and this was my fourth attempt. So we used to give a lot of mock test classes with proper mocks दिए हैं हमने. I will not be able to tell you the number of mock tests मैंने दिए, मुझे याद भी नहीं है. हर Sunday I think January से हमने start किया था and till May, till 1 week before release हम हर Sunday mock दे रहे थे, 2 mock every day. So I lost count and same for mains. हम हर weekend में 3 papers लिखते थे and there was no break. You know how UPSC examination is, right? You know the amount of hard work that goes into it. So I think prelims हुआ हमारा and next week से we started studying for mains. हमें पता नहीं था prelims होगा, we were not very sure, but all of us went into mains mode. And within a week we started studying, we started writing, and we started value addition notes हमने बनाना start कर दिए. So we went into mains mode. I think एक महीने बाद आया था mains का result और जब तक result आया हमने 4-5 essays और GS1 और GS3 almost wrap up कर दिया था. So एक काफ़ी edge मिला. बिकॉज अगर आप ये वेट करते हो कि रिजल्ट आए और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें तो वो एक बहुत ही फ्लॉड अप्रोच है. एंड वेरी इम्पोर्टेंट इज गाइडेंस. आई एम नॉट टेलिंग यू दिस बिकॉज मैं यहाँ से हूँ और मैंने ये किया है, बट बिकॉज मैंने अपने 2 साल वेस्ट किए हैं इन आई वोंट नेम एन इंस्टीट्यूट बट इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नो प्रॉपर गाइडेंस, कोई प्रॉपर मेंटरशिप नहीं थी. सो मुझे पता है कि वो 2 साल कितना हैवी होता है ग्रेजुएट के लिए. वंस यू ग्रेजुएटेड, योर फ्रेंड्स आर वर्किंग, सब कुछ ना कुछ कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो और आप क्लियर नहीं कर रहे हो.
So that burden is too much because आपने genuinely मेहनत की, but आपने सही मेहनत की। You know, UPSC में हम कहते हैं कि क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है वो उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप आज ऑनलाइन चले जाओ, आपको दुनिया भर के करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएंगे। So I'll tell you what I did in my first attempt. Where I had no one to tell me कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, no one in my family, I didn't know anyone who was preparing for UPSC. So मैंने current affairs start किया और मैंने एक मैगजीन उठाई, मैंने 1 महीना किया। फिर मैंने सोचा कि ये कवर नहीं कर रहा है, एक और मैगजीन उठाते हैं सेम मंथ। मैंने वो भी उठाया और पढ़ा और 3-4 महीने मैंने 2-3 मैगजीन से एक मंथ को कवर किया। अल्टीमेटली आई रियलाइज कि एग्जाम में 1 हफ्ते बचे थे, मेरे पास ना रिविजन का टाइम है और ना ही मुझे कुछ याद है। सो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट वाज द टाइम मुझे रियलाइज हुआ दैट इट्स ओके टू यू नो लीव सर्टेन थिंग्स। मत करो, छोड़ दो, हर चीज आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं आज आपसे पूछूं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, विल यू बी एबल टू टेल मी? यस or no? Not precisely. Yes? Not precisely. Not precisely. Again, a major flaw. हम क्या, आप क्या समझे होंगे अपने बड़ों को कहते हुए कि यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, यूपीएससी इज नेवर एंडिंग, हर चीज पढ़ लो, हर चीज नहीं। यूपीएससी बेवकूफ थोड़ी है कि उन्होंने एक सिलेबस दिया है आपको 4 पेज का। क्यों दिया है? टू रीड, टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या पूछा जाएगा। फॉर इंस्टेंस ऐसे का सिलेबस क्या है, ऐसे के नीचे क्या लिखा होता है? एनीवन? अगर मुझे भी नहीं, 2 अटेम्प्ट तक होता, ठीक है, 2 अटेम्प्ट मैंने दे दी, मुझे सिलेबस पता नहीं है। सो दैट इज द लैक ऑफ गाइडेंस और समवन एल्स टेलिंग यू कि कैसे प्रिपेयर करना है। दैट इज अ मेजर फ्लॉ। आप अनलेस सिलेबस रखोगे अपने पास, आप कैसे क्लियर करोगे? जब आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है तो आप एग्जाम में कैसे रखोगे और आप बैठ के क्या करोगे? एक सिलेबस होता है, वो सबके पास होना इज इम्पेरेटिव। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, एक सिंपल बात है, आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं। बहुत सिंपल बात है। हम क्लास में डेली सिलेबस लेके आ रहे थे और एक वर्ड, and I mean it, every single word that is written in the syllabus has to be covered. So it's a 2-page syllabus रहता है वो आपका और एक वर्ड आपको कवर करना है everything. So for instance disaster management है, उसमें आपको एक बुकलेट मिलेगा, you have to highlight कि आपने disaster management क्या है, challenges है, like it was disaster management, challenges and solutions. You have to do that entire thing. You can't just think अच्छा disaster management है, मुझे पता है floods क्या होता है, मुझे पता है earthquake क्या होता है, I know all of this, this is very general knowledge. It's not right, because you are trying to be in a position of let's say SDM and DL. आपको precise knowledge होना चाहिए, precise idea होना चाहिए कि आप उस situation में रहोगे तो आप क्या करोगे। So एक तो syllabus imperative आप लोगों के पास नहीं है, which shows that you know you all are not into preparation, and I know you all are not into preparation. मैं भी जब आपकी जगह थी मुझे भी नहीं पता था, which is totally okay. But if you are actually a serious aspirant, you need to have command over the syllabus. पहली बात। दूसरी बात is that classes में मैंने बहुत बार देखा है regular attendance नहीं होता है students के। See, UPSC can be demotivating as well. ठीक है, तो आई टेल यू, जब से मेरा रैंक आया है 165, 3 बार फेल हो चुकी हूँ, चौथा, ठीक है, आई हैव सीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कम फ्रॉम प्लेसेस दैट आई नेवर हर्ड ऑफ। आज आई एम एवरीवन्स डॉटर एंड एवरीवन्स सिस्टर एंड एवरीवन्स रिश्तेदार, पर मैं जब 3 बार फेल हुई तो there was no one, my mentors were there, I'll be very very honest, my family was there, and sir थे। मैंने चौथे अटेम्प्ट में बोला भी था सर को, आई डोंट वांट टू गिव हिम दैट, यू नो, लेट इट गो, आई जस्ट डोंट वांट टू से, बहुत डिमोटिवेटेड है। ही इज लाइक कि यू विल डू इट। उनका मतलब ये था इफ समवन कैन डू इट यू विल बी एबल टू डू इट। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, आई ही मोटिवेटेड, और मैं एग्जाम्स के लिए भी नहीं आना चाह रही थी एक पॉइंट पे, एंड ही इज लाइक नो यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। आई वाज सिक एंड ही इज लाइक नो यू विल हैव टू कम, और मुझे आना पड़ा। मैं बीमार थी, बुखार था, और मैं आई और मैंने 3 पेपर लिखा उस टाइम पे। And luckily that same topic came in the essay.
main lesson. So obviously mentors will be there to push you, but you will have to push yourself. Right? आपका वो attitude नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बताए कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. That is not how you clear UPSC. एक self motivation is extremely important. And बाकी आपके पास obviously you will have your peers, you will have your mentors, and the teachers to guide you every step of the way. That I can vouch for because मुझे बहुत hand holding जिसको हम कहते हैं ना spoon feeding कि ऐसे introduction मत लिखो, अंडरलाइन करो. एक बहुत छोटी छोटी चीजें कि हेडिंग को एक बॉक्स में डालो, इतने अटेम्प्ट करके देखो. मतलब इस कदर हैंड होल्डिंग की गई है. आई थिंक तभी इट इज पॉसिबल टू गेट अ रैंक लाइक दिस. एंड even now it's like, so what do you want to do in future? So अभी से I am also planning कि मुझे अभी और आगे क्या करना है. Like, should I go for a master's or should I'm waiting for the service application. So you can't sit back, you can't be laid back, because कितने लोग बैठते हैं एग्जाम में? 10 lakhs? उसमें से सीरियस नहीं बैठता. Let's be real, right? मैं दिल्ली की फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ. Let's say on a higher limit पे ले जाते हैं 2 लाख, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. Right? आपका actual competition किससे है? 2 लाख है. अब 2 लाख में 1000 में आना is achievable or not? Definitely. तो पहले तो ये आइडिया हो जाओ कि 10 लाख लोग बैठ रहे हैं. वो दिल्ली वाली भीड़ है, उसमें हमें जाना नहीं है. क्योंकि आप 10 लाख लोगों से आप जाओ किसी टपरी पे जाके चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, आप उनसे नेक्स्ट टाइम पूछना कि सिलेबस बता दो क्या है. बस इतना पूछना कि टेल मी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड हु आर इन द 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट, उनसे आप पूछो. बिकॉज यू रिक्वायर अ डेडिकेटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अ गाइडेड अप्रोच. आपको एक गाइडेंस के साथ चलना होगा. यूपीएससी इज नॉट अबाउट यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो ये भी करो. नो, it's about following a very simple straight path. And don't let people tell you it's difficult. It is. I am not denying that. Obviously बहुत मुश्किल है, but unachievable तो नहीं है. लोग ला ही रहे, कोई तो है रैंक 1 लाए ना, किसी ने ला ही रहे. कोई 1000 में भी आया है तो पॉसिबल है तभी लोग कर रहे हैं, पॉसिबल है तभी एग्जामिनेशन हो रही है. It's all about how much you want to be involved in this. 3 चीज हम मानते हैं, ठीक है? One is hard work, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. The second is perseverance. Unless आपके अंदर perseverance हो, बहुत मुश्किल है इस एग्जाम को क्रैक करना. Perseverance in the sense that if I fail, it's okay. See, if you're serious from the very first attempt, if you're actually guided from the very first attempt, कोई reason नहीं है failure का. ठीक है? There is no reason to fail. But मान लो because unpredictable exam है, तो आपको क्या करना है? गिव अप करना है या कंसिस्टेंट रहना है? सिंपल बात है. आज नहीं तो कल हो गई. And third is obviously consistency. It's not like कितना, आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ने हैं यूपीएससी के लिए? 7 to 8 और 6 to 7 और किसी को लगता है 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने. To be honest, smart that. I did not know that. So honestly, I did not know that because no one was there to tell me, and I'm not saying I'm old, but उस टाइम पे उतना डिजिटल मीडिया में वो चीज़ नहीं थी. But that's the thing कि obviously if you are studying 6 to 7 hours a day, because a lot of people work as well, जो काम कर रहे हैं वो भी निकालते हैं, right? तो अगर आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ते हो और अगले दिन 1 घंटे की पढ़ाई, वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाता है. कंसिस्टेंसी इज इन द सेंस कि इवेंट है, कोई सोशल इवेंट है, कोई बर्थडे पार्टी है, डोंट केयर, भूल जाओ. कुछ दिन के लिए सब भूल जाओ. आई एम नॉट सेइंग बाहर आप नहीं जा सकते, आप फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं सकते, आप चलिए आप सब कर सकते हो, लेकिन एक दायरे में. लेट्स से वंस अ वीक फॉर 2 आवर्स मोर देन इनफ. ये अगर कोई बोलता है कि बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, नहीं, ये भी गलत है. You need, you're a human, right? हम social animals हैं, हमें थोड़ा बहुत social होना जरूरी है. पर एक दायरे में आपका major priority क्या होना चाहिए? Your study. And trust me, when I used to miss events, all my friends were like, "You never come with us. You know इतना क्या है," and all of them are like, it's worth it. It's good. You were smart. You didn't come with us. So things change, people change, right? It's about what you want to prioritize. मैं बाहर चली जाऊंगी 2 घंटे, obviously मैं enjoy करूंगी. But if it's going to hamper my studies,
I don't think I will ever go. Does not matter कि वो कौन सा इवेंट है, कोई वेडिंग है, कोई बर्थडे है. I haven't celebrated my birthday for 5 years at a stretch because मेरा birthday just prelims के आसपास आता है. So I was not able to celebrate. But that's fine. I think this year I will be celebrating it in a very grand manner. So चलेगा. I think that's okay. Right? So वो थोड़ा sacrifice is जरूरी. वो ये कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. Right? और guidance I will be always coming in. एंड मैं जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपसे इंटरेक्शन में मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी जिस भी तरीके से. एंड खैर जो मेंटर्स ने मुझे गाइड किया है वो आपके साथ रहेंगे, सो आई थिंक वहाँ पे आपका एक अपर हैंड है कि वो गाइडेंस मुझे लेट मिली, आपको स्टार्टिंग से मिलेगी. बिकॉज आई डोंट थिंक योर ऑल विल बी, इफ यू आर अपीयरिंग इट वोंट बी बिफोर 25, राइट? 24 में तो आप लोग अटेंड नहीं करें. 2025 इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट दैट यू ऑल एनीवन विल गिव. कौन देने का सोच रहा है 2025 में? 24. ये इस Yeah, actually I attempted before also, but then it was like yours thing. I was preparing on my own. Yeah. See, the thing is ना क्या होता है कि ये एक competitive exam है, ठीक है? तो आप बिना competition के कैसे समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं या हम कहाँ पे stand कर रहे हैं? So I'll tell you this thing. When I used to write mains, I'm talking about last year when I did not clear. So I was writing my mains alone. So I did not have a very strong, backup to compete with. मुझे पता नहीं था मैं बार कहाँ पे सेट करूँ. मुझे लग रहा है कि हाँ 110 आ गया ऐसे में तो अच्छा है, 90 आ गया जीएस में तो अच्छा है. बट यहाँ इस बार जो हम 7 लोग बैठे मेन्स दे रहे थे, you 7 of us, and we used to start at 8 in the morning. 8:30 हम यहाँ पहुँचते थे every Sunday, and we used to write one paper, take half an hour break, again write another paper, take half an hour break, again write another paper. तो हम 7.5 घंटे लगातार लिखते थे. और उसके बाद हम एक दूसरे के पेपर्स को आंसर्स को रीड करते थे. आई थिंक वो बहुत एनरिचिंग है क्योंकि किसी का ऐसे बहुत अच्छा है, किसी का जीएस अच्छा है, किसी का एथिक्स अच्छा है, किसी का ऑप्शनल अच्छा है. तो एक वो चीज है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पेयर ग्रुप है, एक बैच ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स है, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है. और सेकंड चीज है कि अगर आप हर हफ्ते एग्जाम लिखते हो, लेट्स से फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स एंजाइटी है यहाँ पे किसी को, एग्जाम के पहले नींद नहीं आती है, एग्जाम के पहले हम नर्वस हो जाते हैं, है किसी को यहाँ पे? नहीं, नर्वसनेस वगैरह तो होती है. राइट, होती है. तो मुझे जैसे मैं अभी भी अगर मुझे कोई बोले प्रीलिम्स में बैठूं तो मुझे बहुत डर लगता है कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज. डोंट टेल मी टू राइट प्रीलिम्स. मेरे को मेंस इंटरव्यू दे दो चलेगा, प्रीलिम्स में मत बैठाओ बिकॉज इट इज फॉर मी पर्सनली इट इज वेरी स्कैरी. सबका अपना स्टेज होता है, मुझे प्रीलिम्स से सबसे ज्यादा डर लगता है. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज दैट फ्रॉम जनवरी टू मे एवरी संडे जो प्रीलिम्स का टाइमिंग होता था, हम उस टाइम पे आके एग्जाम देते थे. 4 महीने हमने ये चीज की. जब मैं प्रीलिम्स के हॉल में एंटर की, मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठी हूँ. इट्स बिकॉज माय बॉडी बिकेम सो यूज्ड टू इट कि आप हर संडे सेम टाइम पे सेम आवर में सेम चीज कर रहे हो 4 महीने से. हैबिचुअल हो गया. सो वो एंजाइटी पूरी खत्म थी. मुझे मतलब अपने आप को बोलना पड़ रहा था कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग नर्वस, दिस इज यूपीएससी, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर. बट आई वाज नॉट नर्वस एट ऑल. And not only me, I'm talking about everyone. Because हमने वही किया, सबका ये था कि बॉडी क्लॉक हैबिचुएटेड है उस चीज से. तो वो चीज बहुत जरूरी है. आप ज्वाइन अगर करते हो और आप पढ़ते हो तो ये चीज ये बहुत बहुत ज्यादा इंपैरेटिव है. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पढ़ लिया अचानक से आप जाओगे यूपीएससी का एग्जाम में तो ये हो जाएगा. इम्पॉसिबल. आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं दोगे इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर. एकदम सिंपल लॉजिक है. मैंने मॉक नहीं दिया था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स की मैं बात करें, पॉसिबल ही नहीं है. unless you appear for mocks, unless you're consistent, unless you're hardworking, बहुत मुश्किल है. So ये 2-3 चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए. And I don't think you should ever fear failure. Easier said than done. मुझे पता है सबको एक टेंशन रहती है बैक ऑफ माइंड की, मुझे भी थी कि नहीं हो रहा है, age हो रहा है, not getting a job, still struggling, my friends are settled, but because you all have dreamt big, just stick to it. थोड़ा stick to it because
I don't see any reason, and I'm being very very honest with you all. If you all start working hard in today, मुझे कोई reason नहीं दिखता है कि आपका clear नहीं होगा, because बहुत सारे लोगों ने अपने first attempt में clear किया है. और मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे if you see उत्साह, हर्ष, ठीक है, हर्ष ने शायद 3 महीने पढ़ाई की थी प्रीलिम्स के लिए और उसने क्लियर किया. But it's all about consistency and hard work, and वो 3 महीने वो extremely consistent था. Because and you have people to tell you क्या सही है क्या गलत है, कैसे अप्रोच करना है, because for all of that. And this year also we pretty much expecting 15 to 20 people clear करेंगे, very very bright students. अगर आप बैठते हो तो आपका competition उनसे होगा. So you already have a very higher benchmark set for you. So if you are competing here, you're competing with pretty much the best minds of the country. अगर आप यहाँ पे top 5 में आ रहे हो, तो it is very well established कि आपका prelims होगा. मतलब वो impossible है कि आपका prelims नहीं हो, because papers difficult है और लोग वैसे हैं, people from IIT, IIM, people who appear for the interview. So if you are able to do your best, I think there is no reason कि आपका first attempt में नहीं किया. I do not see any reason. And don't consider this जितना भी attempt है आपका, unless you start preparing honestly, preparing seriously in a guided environment. आप इसको अपना first attempt रखो. कि वो attempt का burden I understand, पर उसको अभी मत रखो अपने दिमाग में. अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ interact करना है, मेरे बारे में कुछ जानना है, अपने बारे में कुछ बताना है, तो please feel free. Whenever you study, so suppose you're studying say history, you have completed some modern history part, and now you have say supposedly moved to say geography. So how did you used to recapitulate the entire history part? Like what happens to me is, suppose I finished history say in 15-20 days or 1 month. Yeah. Say after 3 months I tend to forget stuffs like Yeah. very specific data or factual information. So how do you constantly do this for all the subjects throughout a year? See, revision is key. Again, I like जैसे हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम फॉलो करती हूँ, ठीक है. बहुत लोगों ने मुझे बोला आप ये भी किताब फॉलो कर लो, ये भी पढ़ लो. आई नॉट. यूपीएससी प्रीलिम्स में मुझे 100 के 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने नहीं है. सिंपल बात. मेरे को करना है 80 to 90. आई एम ओके टू लीव 10 क्वेश्चंस. अब उन 10 क्वेश्चंस के पीछे अगर मैं भागूंगी तो मुझे 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, जो पॉसिबल है नहीं और जो स्मार्ट भी नहीं है. Be a little smart. The thing is that if you buy for one subject, अगर आप 3-4 किताबें खरीदते हो, आप रिवाइज ही नहीं कर सकते उसको. एक किताब पे स्टिक करो, जो भी आप फॉलो करो उस पे स्टिक करो और उसको रिवाइज करो. जैसे मेरा पॉलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस मुझे पसंद है एंड पॉलिटी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट आई हैवंट रिवाइज्ड इट सिंस अ मंथ. तो अगर आज आप मुझसे कुछ पूछते हो पॉलिटी का, आई मे मेक मिस्टेक्स. सिंपल एज दैट. जबकि आई क्लियर राइट, but I will make mistakes because मैंने रिवाइज नहीं किया. And if you ask me the number of times I've revised लक्ष्मीकांत, मैं आपको नहीं बता सकती, because मुझे याद ही नहीं मैंने उसको कितने बार पढ़ लिया. I think एक किताब मैंने फेंक दिया because उसमें इतने मार्किंग्स हो गए थे. मैंने दोबारा एक किताब लाया है जो आपको लगेगा 100 पुराना है, because उतनी बार मैंने उसको रिवाइज किया. तो unless you revise, you are bound to forget. ये इम्पॉसिबल है कि आपने सोचा एक बार हमने पढ़ लिया और हो गया. आपको रिविजन करना होगा. So what we used to do is there are 2 things that you can help yourselves with. एक हो गया कि हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन आप रिविजन के लिए रखेंगे. मानो 5 दिन आपने पढ़ाई की, एक दिन रिविजन, एक दिन टेस्ट. दूसरा तरीका है इज अगेन मॉक टेस्ट. अगर आपके पास, आपको पता है हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है, तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे. और मॉक टेस्ट में क्या होता है, इफ यू मेक एरर्स, मानो आपने कोई गलती की, तो वो आपके दिमाग में रहता है कि मैंने ये गलती की थी, राइट. आई हैड मेड दिस मिस्टेक. सो व्हाट यू शुड डू इज व्हेन यू गिविंग मॉक्स, मानो यू मेक अ मिस्टेक, यू रीड दैट आंसर कि आपने वो गलती की एंड ऐड दैट इन योर नोट. सो अगर मैंने 10 क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, तो 10 में मैंने मानो 10 क्वेश्चंस गलत किए होंगे, 20 क्वेश्चंस गलत किए होंगे. वो 20 क्वेश्चंस शायद मेरी किताब में नहीं है, शायद मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस मैंने एक जगह पे लिखे कि आइंदा अगर ये आए
तो मैं ये गलती ना करूँ. That is how you add new knowledge in your existing case. So revision आपको करना है, लिमिट करना है अपने सोर्सेस को. एंड सेकेंडली इस मॉक टेस्ट में जहाँ आप करना चाह रहे हो, जो आपको लगता है नया इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत छोटे समराइज फॉर्मेट में एक आप कॉपी बना सकते हो. जैसे मेरा हिस्ट्री नोटबुक था अपना, तो मैं उसमें पीछे लिख देती हूँ कि ये मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है या ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, या बुक में उस जगह ऐड कर देती थी. मानो रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक क्वेश्चन आ गया जो मुझे नहीं पता, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक चैप्टर पीछे स्पेस है, अब जाके लिख दो, 2-3 लाइन ही होता है मैक्सिमम. दैट इज, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो वो नॉलेज आपके पास है ऑलरेडी. What is the importance of NCERT and from how to approach NCERT? देखो, I'll be very honest, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से. सब बोलते हैं NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऑनेस्टली मैंने NCERT नहीं किए. मैंने किया है NCERT और ज्योग्राफी, बिकॉज दैट इज वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. मैंने इंटायरली अपना ज्योग्राफी NCERT से किया है. सो क्लास 6 to class 10, क्लास 10, 6 to class 10, तो सॉरी 12, 6 to 12 आप NCERT खत्म कर दो. आई थिंक ज्योग्राफी सेट्स योर बेस. बाकी पॉलिटी मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत से किया है. आई थिंक वो काफी एक हेफ्टी किताब है, और बाकी कुछ आया तो छोड़ दो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स. फॉर हिस्ट्री देयर आर सर्टेन NCERTs which are very important, not every NCERT. तो वो आपको बताया जाएगा, वो आपको उस चीज का यू डोंट टेक स्ट्रेस. जो NCERT इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, ये आप इसके बिना नहीं चल सकते, वो मैं आपको डेफिनेटली दे विल बी टेलिंग यू कि आप ये NCERT करो, ये NCERT यू कैन लेट गो. बट apart from this, if I'll be very honest, I have not followed a lot of NCERT. I've done it for geography, selectively for history, very selectively for political science, very selectively. I think 1 or 2 NCERTs, और बाकी मैंने किसी NCERT को नहीं किया, none at all. ठीक है, तो वही है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, थोड़ा ट्रिकी है, स्पेशली फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, बिकॉज हम हमेशा सुनते हैं NCERT इम्पोर्टेंट है, एंड NCERT ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट. इफ यू हैव द टाइम तो आपको करना चाहिए. मेरे पास जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी तो कुछ ही महीने में प्रीलिम्स था, आई डिड नॉट हैव द टाइम और द लग्जरी टू कवर NCERTs, तो मैंने नहीं किया, एंड इट वाज ओके. आई डिड नॉट सी एक ह्यूज एक डेफिसिट मुझे नहीं दिखा विदाउट डूइंग NCERTs. बट इफ यू हैव द टाइम and if you think you're not appearing next year, or you're appearing after that in 26, and if you have, let's say, a year entirely, or a year and a half or 2 years, then you can first do your standard books जो important है, then selectively your NCERTs, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे NCERTs कर लो. बट लिमिट करो अपने रिसोर्सेज को ना. लिमिट करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. लेट पीपल से कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, नहीं करना है, बिकॉज आपको अल्टीमेटली रिवाइज करना है. और मैक्सिमम कितना आप पढ़ लोगे एक किताब से, एक नई किताब से. आपको लिखना भी तो वर्ड लिमिट में ही है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी तो होता है, तो वो आप रिस्ट्रिक्ट करो. क्या और कोई? यस, How to choose standard book? that we will tell you how to choose standard books. You don't worry about कि आपको क्या किताब पढ़ना है. वो वही चीज है कि that you will be guided with. एज एस्पिरेंट्स हमारा यही प्रॉब्लम होता है, क्या पढ़िए और क्या छोड़े, कौन से करंट अफेयर्स को फॉलो करें, कौन से न्यूज़ पेपर को फॉलो करें, ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ें. तो उस डोंट वरी अबाउट दैट यू विल बी गाइडेड, दैट यू विल बी टोल्ड. उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए. आप चूज करोगे तो मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, एक हॉच पॉच हो जाएगा, तो आप उसका टेंशन मत लो. वो सर आपको बता देंगे, तो आपको दिया जाएगा, एंड फॉलो दैट. आई थिंक इट इज मोर देन इनफ टू secure a good rank. If you dedicate it. थोड़ा unpredictable है, I won't deny that. थोड़ा मुझे लगता है क्योंकि I think हम 2000 लोग थे इंटरव्यू में, and I'll be honest, मुझे नहीं लगता है कि जो 1000 सेलेक्ट हुए हैं वो केपेबल है, और जो 1000 सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो केपेबल नहीं है. मुझे लगता है यहाँ पे मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वो भी काफी केपेबल है, उनका लक नहीं काम किया इस बार. That is my, because reaching to 2000 out of lakhs is a huge and few of my friends have not cleared. I feel were extremely talented,
but it's just that the luck did not work and they'll be appearing again this year. So again, consistency, perseverance, I think वही करना है. I'm pretty sure if they appear this year, they will be in the top 50 or top 100 at least. I don't see them below that. So PYQ success or PYQ is important. देखो क्या है ना कि PYQ बहुत important था या अभी भी है, I won't say that. But 2023 पेपर आप लोगों ने देखा था? कैसा लगा था? देखा था? उसके पहले के पेपर देखे थे? How did you find it? They have changed the pattern. Entirely. So it was a bummer for everyone in that particular hall. मेरा सेंटर मौलाना आजाद में था, I think, and we were sitting in that huge hall there, ठीक है? And मैं तो खुद ही दे रही थी तो मैं परेशान थी और बाकी सारे लोग वजह से कि क्या है कि what is this, because हमने PYQs किए थे और उसका पैटर्न अलग था and अचानक से we were given the question which we used to read in mocks कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे मॉक में, मैं तो छोड़ ही देती थी कि ऐसे क्वेश्चन करने नहीं है, डिफिकल्ट है, only one only two वाला करके चले जाएंगे और पूरा पेपर उससे भरा हुआ था कि only one statement is right, only two statement is right, and I was lost completely कि ये तो प्रैक्टिस नहीं है. तो अभी क्या है कि PYQs आपको करने हैं for knowledge, but especially 23 और 24 I think let's see क्या पैटर्न आता है. ये आपको प्रैक्टिस करना है और इसी पैटर्न में मॉक्स आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज देखो यूपीएससी का भरोसा नहीं है, हो सकता है वो 2025 में फिर अपने पुराने फॉर्मेट में चले जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो आएगा ही नहीं. तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है और आपको हर काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है. ये सोच के एक प्रीसेट माइंड से बच जाओ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हमने ऐसे ही प्रैक्टिस किया, एकदम माइंड से जाओ, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये यूपीएससी का आशीर्वाद है आपके, आप अपने पैसे की don't expect anything from UPSC because we were very disappointed after giving the paper. मैं आके बोल दी सबको I'm not clearing prelims and I don't think I'm ever clearing prelims. ऐसा पेपर रहेगा, especially CSAT मेरा काफी कमजोर है, मैथ्स मुझे बहुत पसंद नहीं है और बहुत आता भी नहीं है honestly. तो मैंने बोला सर CSAT की वजह से मैं फेल ही हूँ, so I don't want to appear anymore, I'm done. And then sir was like नहीं next week से मेंस की तैयारी करो. I think सर रिजल्ट ही नहीं होगा तो अभी मेंस पढ़ते, तो इसे नहीं करो 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 करो. And luckily I listened to him. तो एक महीने पहले से मैं रेडी थी before my result for mains, क्योंकि बहुत लोग डिसअपॉइंटेड थे ना, तो बहुत लोगों ने पढ़ाई बाद में स्टार्ट की रिजल्ट के बाद. आई थिंक वहाँ एक एज, एक एडवांटेज हमें मिला, बिकॉज यहाँ से बहुत प्रेशर आया कि नहीं आना है, एग्जाम देना है, क्लासेस अटेंड करने हैं. सो नॉट लाइक हाँ सर ठीक किया आपने, अगर डाटा की आना है तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज लाइक तो एक महीने पीछे रहती है और 2 महीने में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, तो यू नो मीन्स करना. So be ready for any kind of paper. Practice your PYQs. More than that, very very important. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना important है मॉक टेस्ट. अगर आप मॉक टेस्ट में एब्सेंट हो रहे हो ना, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को, सबको हैबिचुएट करना पड़ेगा कि हर संडे 9:30 to 11:30 and 2:30 to 5:30 जो भी टाइमिंग है आप एग्जाम दे दो. तभी आपका बॉडी यूज टू होगा, तभी आपका माइंड यूज टू होगा, तभी आपका माइंड उस दिन चलेगा, नो मैटर क्या प्रेशर है, नो मैटर. बिकॉज जिन लोगों ने मॉक्स नहीं दिया था वो पेपर देख के बहुत ज्यादा पैसिव हो गए, उनको नहीं पता था कैसे डील करना है, राइट. हमारा बॉडी बहुत यूज टू हो चुका था, तो हमें 9:30 और 11:30 ना सोचने की आदत है कि भाई मॉक्स में क्या सोचना है, कैसे करना है. सो वी वर यूज्ड टू दैट. सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है मॉक्स. उसके बिना आप जितना भी पढ़ लो, जितनी भी किताबें पढ़ लो, एग्जाम आप नहीं कर पाओगे. Ma'am, so as you were speaking about mocks, so if you could share like when you started doing mocks, what was the like average marks that you were getting? Because when I was giving the mocks, getting a very low score, and then it's like having a like counter effect on me. Like I cannot score good. Yeah. So see the thing is mocks के पहले एक बहुत लॉजिकल चीज आपको करनी है इस पढ़ाई बिना उसके तो आप मॉक्स देख के कुछ कर रहे थे. तो हमने काफी पढ़ाई की थी उसके पहले.
एंड वही मैंने बोला मैंने जनवरी से मॉक देना स्टार्ट किया है। तो आप सोच लो जनवरी से लेके टिल अक्टूबर में हमारा मेंस था, तो टिल सितंबर मैं हर संडे कोई ना कोई या तो प्रीलिम्स का या तो मेंस का मॉक दे रही हूँ। और मैं नहीं, बाकी लोग भी यहाँ पे चलते थे। अभी भी इतना संडे मॉक्स चल रहा है। तो पहले तो आपको हर हफ्ते देना है, वीकली 2 मॉक तो आपको देने ही है, एक जीएस का एक सीसैट का। पहले सीसैट इम्पोर्टेंट नहीं था, इस बार आपको पता है कि बहुत लोगों ने सीसैट की वजह से क्वालिफाई नहीं किया है, राइट। तो जिनका मैथ्स कमजोर है, जो मानो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप फोकस भी करना है आपको सीसैट पे, वो आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आप स्ट्रेस मत लो। Secondly is that mocks have to be weekly, mocks have to be consistently. जैसे मार्क्स कम अगर आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो 2-3 रीजन होता है, ठीक है, मॉक्स अच्छे नहीं आने का। एक होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, एक मेजर कॉज जो है दैट यू हैव नॉट स्टडीड इनफ। द सेकंड रीजन इज दैट यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड योर वीक एरिया। मानो आपने मॉक दिया, आपको तो 200 में आता है 50, ठीक है, ना आपने पेपर चेक किया, ना आपने अपनी गलतियां चेक की, ना आपने आंसर की पढ़ा, क्या आपको लगता है आप सेकंड मॉक में इम्प्रूव करोगे? पॉसिबिलिटी नहीं। तो एक है कि मॉक में क्यों आया 50 और किसी का 100 क्यों आया, ये आइडेंटिफाई करना कि मैंने कहाँ गलती की। बहुत लोग करते हैं OMR शीट पे गलत मार्किंग, ये एक पॉसिबिलिटी है। बहुत हो गया कि इनकरेक्ट बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, वो सारी चीजें हम सिंपल है, लेकिन इसी में आपके 4-5 मार्क्स चलेंगे। और यूपीएससी प्रीलिम्स में 0.25 से भी लोगों का नहीं हुआ है, 0.25 से पीपल हैव मिस्ड आउट ऑन प्रीलिम्स। तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये मिस्टेक्स आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक पैटर्न होता है, सबको कोई अटेम्प्ट करता है 98, देयर आर पीपल हु अटेम्प्ट 98, देयर आर पीपल हु अटेम्प्ट 80। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। सबका अटेम्प्ट अलग होता है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोल सकती कि सारे के सारे 85 to 90 यूज करो। किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, किसी की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है वो 80 में रुक जाते हैं, जिनकी अच्छी नहीं वो 95 तक जाते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफिकेशन अगेन मॉक्स से होगा। तो अगर आपके मॉक्स अच्छे नहीं आ रहे, डीमोटिवेट मत हो, पहले आइडेंटिफाई करो रूट कॉज क्या है कि मॉक्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। या तो आपने रिवीजन नहीं किया, या तो आप आंसर के नहीं चेक कर, ये चीज करो। और फिर अपने अटेम्प्ट्स को मैनिपुलेट करो। जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि अगर आप 85 कर रहे हो, 90 कर रहे हो, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार कम अटेम्प्ट करके देखो। ज्यादा अटेम्प्ट करो, ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, एक बार कम अटेम्प्ट करके देखो, 70 पे रुक के देखो, 75 पे रुक के देखो कैसा आता है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू विल आइडेंटिफाई कि आपके लिए आपका बेस्ट अटेम्प्ट क्या है। किसी का 95 होता है, किसी का 85 होता है, किसी का 60 में भी हुआ है प्रीलिम्स, 60 अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स हो गया, एक्यूरेसी उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपको कोई तो नहीं बता सकता, वो मैं आपको नहीं बता सकती कि तुम्हारा अटेम्प्ट ये होना चाहिए। मेरा अटेम्प्ट इज अराउंड, मैं अपना बताऊं तो माई अटेम्प्ट वाज 85 to 90, और मैंने इसमें बहुत वेरिएशंस किए थे अपने बॉक्स में। तो मैंने 95, 98 भी करके देखा, तो मेरे नेगेटिव ज्यादा हो गए। फिर मैंने 70 पे रोक के देखा, तभी मार्क्स नहीं अच्छा आया। तो मॉक्स के थ्रू क्या है ना, मैनिपुलेट करो अपने अटेम्प्ट्स में, और फिर आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट क्या है। सबका रेंज अलग होता है, और आप यूपीएससी वाले में तो ये नहीं कर सकते ना कि हम अभी देखते हैं क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मॉक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना और फिर उस पे कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको लगता है 85 to 90 इज योर अटेम्प्ट, तो हर पेपर में, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पेपर इज, 85 to 90 ये 2-3 चीजें ट्राई करके देखो, मे बी इट विल हेल्प यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज आंसर की। आंसर की पढ़ो, कहाँ गलत जा रहे हो, और ऐड करो इसको अपने नोट्स में, बिकॉज अनलेस आप आंसर की से कुछ सीख रहे हो, मॉक देके तो फायदा नहीं है। Do you check your answers? Yeah, I check my answers. So what happens is, like after I'm checking, I add it. But next time, if those questions come, it's fine that I get those correct. But again, something else comes. That is, वो तो UPSC वाले के लिए होगा. Yeah, and if I like give 2-3 mocks, say on a regular interval, and for all those mocks I do not get good marks, then negative like energy comes. Negative मत करो यार. कितने लोगों ने छठे अटेम्प्ट में IS मिला है उनको, तो वो कंसिस्टेंसी रखो.
एक और चीज आई डू कैन कि यूपीएससी इज अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट डेडिकेशन एंड इट्स अबाउट स्टडीइंग अ लॉट, बट इट्स आल्सो अबाउट स्मार्ट वर्क. ठीक है, लोगों ने 5 दिन पढ़ के भी प्रीलिम्स क्लियर किया है. So there was this girl, she cleared her interview but she scored a rank of around 800 something, so she did not get a desired service of 10 दिन बाद prelims था, and she sat for it and she cleared. So imagine, it's not always about studying a lot, it's definitely about studying, you have the time, right? But it's also about identifying. Sorry for getting So it's also about identifying कि see UPSC आपको PhD करवा रहा है, ठीक है, UPSC ऑफिसर्स देखना चाह रहे हैं, वो ऑफिसर्स जो प्रेशर के अंदर काम कर सके, वो ऑफिसर्स जो टिके रहे, उनको यही चाहिए कि नो मैटर क्या क्वेश्चन है. जैसे एक क्वेश्चन आई थिंक उसमें काफी मीन्स भी है कि ऐसा कौन सा कैमल है जो पानी में तैर सकता है. अब इसमें काफी मीन्स आए थे, ठीक है. अब नहीं पता इसके लिए क्या करोगे, एनवायरनमेंट का एक ज़ूलॉजिकल किताब तो नहीं पढ़ोगे, क्या करोगे, छोड़ दो, नहीं आता. इस साल भी एक क्वेश्चन आया था 23 में कि कौन सा एनिमल है जो नेस्ट में जो ट्री में अपना नेस्ट, एनिमल जो ट्री में अपना नेस्ट बनाता है. और ये नेटफ्लिक्स के एक सीरीज से था, ठीक है. तो नेटफ्लिक्स के हर सीरीज तो हम देख नहीं सकते, अच्छा भी लगे तब भी नहीं देख सकते, देखेंगे तो याद नहीं रहेगा. तो इसको क्या करना है, यूपीएससी चाहते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो कि आप सोचो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है. इसको अगर आप देख लो ना तो आप बाकी वो 80 क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हो जो एक्चुअली इजी है, जो एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा. क्योंकि यूपीएससी एलिमिनेशन का ऑप्शन आपको देता है, वो एब्सर्ड स्टेटमेंट्स आपको देता है कि नेवर इन इंडिया हैज नेवर वन अ ट्रॉफी इन दिस. अब नेवर, और इंडिया कब से है, मानो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कब तो जीता होगा. तो ये नेवर, एब्सोल्युटली, फिर इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये सारे स्टेटमेंट्स एब्सर्ड है. क्या लॉजिक है या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज कभी नहीं हुआ होगा, राइट? मानो ये अगर बोला जाए दुबई में देयर इज नेवर नेचुरल रेनफॉल, लेट्स से, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है, आई हैव नो आइडिया क्या होता है वहां, क्या होता है, क्लाउड सीडिंग होता है, आई डोंट नो, ठीक है. बट अगर वो बोल रहे हैं नेवर, लेट्स से नेवर एवर, तो कभी तो हुआ होगा. मान लेते हैं, अगर मुझे गैस ही लेना है तो मैं क्या गैस करूंगी, कभी तो हुआ होगा. एक बूंद भी गिरी होगी, वो हो गया ना, एक बूंद भी अगर गिरी है तो उसको मान लेंगे, 5 सेकंड के लिए भी हुआ तो उसको मान लेंगे, राइट. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ एब्सोल्यूट टर्म्स और यूपीएससी करता है, ठीक है. फॉर इंस्टेंस यूपीएससी आपको एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देगा, चाइना एंड यूएसए हैव साइंड अ डील. अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है आईआर के बारे में तो आपको पता है चाइना एंड यूएसए क्या है, ऑपोजिट. वो नहीं करेंगे भी, छोड़ दो. मानो बोलेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू समथिंग, मानो टू समथिंग, ठीक है. अब आपको ज्यादा आइडिया नहीं है बट आपको पता है ना कैसे रिलेशंस हैं, तो लॉजिकली भी तो आप सोच सकते हो कि इंडिया इस चीज के लिए अग्री थोड़ी ना करेगा पाकिस्तान के साथ. बहुत सारे डील्स हैं हमारे, बहुत सारे डील्स हैं हमारे. मानो वो बोलते हैं कि इंडिया हैज अग्रीड टू टेक ऑन पाकिस्तानी रेफ्यूजीज इन कश्मीर, आप मानोगे स्टेटमेंट को? अब आप सोचोगे ये न्यूज में था क्या, मैंने पढ़ा क्या, शायद मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे तो नहीं आता. तो छोड़ो ना, लॉजिक लगाओ कि नहीं करेगा इंडिया, इंडिया ऐसा करेगा ही नहीं, वो भी पाकिस्तानी रेफ्यूजीज इन कश्मीर, इम्पॉसिबल. दिमाग लगाओ वो स्टेटमेंट है. और ऐसे ना बहुत स्टेटमेंट्स है यूपीएससी में, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज यूपीएससी यही चेक करना चाह रहा है कि आप नॉलेज के ऊपर खेल रहे हो कि आप थोड़े स्मार्ट हो. जो इस साल का पेपर आया था मुझे बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है. देयर वाज अ क्वेश्चन एट एंड आई डोंट रिमेंबर, सो आई हेट स्पोर्ट्स, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं कुछ नहीं देखती, मतलब मैं बिल्कुल आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स. सो देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सम बैडमिंटन ट्रॉफी, okay, and the question was that India has never won this trophy. The second statement was this trophy is given to men, and again a name that this trophy is given to women. तो जैसे मैंने देखा इंडिया हैज नेवर वन अ ट्रॉफी, मैंने बोला ये तो होगा ही नहीं भाई, इंडिया कभी तो जीता होगा, हिस्ट्री में कुछ तो जीता होगा, मुझे तो नहीं आता, मुझे अटेम्प्ट करना ही है, आई हैव टू अटेम्प्ट समथिंग ना. मैं 30 पे तो रुक नहीं सकती, 30 ही क्वेश्चन आते थे, वो भी 2.5 था, तो मैंने बोला करके देखते हैं.
एंड बाकी जो होता क्या है कि आप जब पेपर्स देने लगते हो ना, आप इतने यूज टू हो जाते हो कि आपको समझ आ जाता है कि इन्होंने इंटरचेंज किया होगा या क्या प्ले है इनके माइंड में। तो मुझे लगा कि नहीं, नाम ऐसा नहीं है और मैंने कभी नहीं सुना उसके बारे में। आई नेवर एवर हर्ड ऑफ इट। और मुझे लगा कि नहीं, लग रहा है यूपीएससी का नाम इंटरचेंज किया और मैंने मार्क कर दिया और आंसर मेरा करेक्ट था। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, आई विल नेवर हियर ऑफ इट। बट इट्स जस्ट कि इतने मॉक्स मैंने दिए कि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि क्वेश्चन पेपर सेट कैसे हो रहा है, पैटर्न क्या है इसका। अक्सर वो इंटरचेंज कर देते हैं और नाम भी ना ऐसा होता है कि आपको लगेगा ये मेंस की तरफ थोड़ा इंक्लाइन है, ये वुमेन की तरफ थोड़ा इंक्लाइन है। सो यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सीएससी 23 का पेपर आप नॉलेज के बेसिस पे दोगे ना, तो आप 25 से 30 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। उतना ही आता है, उतना भी नहीं आता। मैंने फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया, मैंने देखा पीसी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने, उसके बियॉन्ड मुझे आते नहीं था कुछ, एंड नथिंग एट ऑल। बट आई कांट स्टॉप एट 20, आई हैव टू डू समथिंग राइट। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स सी, देखते हैं, कुछ तो पैटर्न होगा। आंसर तो मेरे सामने है, ये डेफिनेट है कि आंसर है मेरे सामने, मुझे बस आइडेंटिफाई करना है। एंड आई थिंक वो मेजर टाइप ऑफ स्टूडेंट चीज था, बट इट पेड ऑफ। सो यू विल हैव टू वर्क लाइक दैट आल्सो। You will have to start identifying, and identification will only come when you sit for mocks, when you do PYQs. उसके बिना identify नहीं होगा। ठीक है? और एक और चीज है, सी यूपीएससी में आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है, आपको सिर्फ मेंस नहीं क्लियर करना है, आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है, राइट? सो योर विल हैव, आई डोंट नो कौन कैसा है, but you all will have to learn to speak up, irrespective of who is there in front of you, because interview के पता है आपको interview pattern क्या होता है। 5 लोग बैठे होते हैं और अगर मैं अपने interview questions आपको बताऊँ, so I am a person who's into academics and who's into social work, NGOs के साथ मैं काम की हूँ। They were asking me about songs, a random Bengali song, never heard of it, and he's like, have you heard of it? So outside में मैंने बोल दिया, I'm sorry sir, my knowledge on this subject is limited. Again he asked me a song, and this is back to back, and I'm like, I'm sorry sir, I haven't heard. Again he asked me a song, I'm like, I'm sorry sir, I haven't heard. He again asked me a song. Again I said sorry. He again asked me a song. So they will try to press all your buttons. कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल तो दिया, मुझे नहीं पता, आप बार-बार क्यों पूछे जा रहे हो? और वो पूछता गया, उसने 5 गाने मुझसे पूछे, मैंने कभी नहीं सुना है, मुझे नाम भी नहीं आते, वो ऐसे गाते थे, जस्ट टू सी मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। ठीक है, देन दे आस्क्ड मी कि यू हर्ड ऑफ यू नो हाई स्पीड ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स। इकोनॉमिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा आज तक जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। ठीक है, मेरे को बोलते स्पीड बताओ ट्रेन का क्या है, मुझे सर नहीं पता। बोलते कौन सा ट्रैक यूज होता है, आप सॉरी सर मुझे नहीं पता। बोलते हैं स्टेशन का नाम बताओ, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से एंड होता है, सर नहीं पता। मैंने कम से कम उस 35 मिनट्स के इंटरव्यू में 10 बार बोला होगा, आई एम सॉरी सर मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी सर आई हैव टू रीड दिस। एंड मैं इंटरव्यू से निकल के बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मैंने इतने बार बोला है कि सर मुझे नहीं पता, सर मुझे आता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है। They just try, so it's like even if people are trying to unnerve you, you have to be calm, you have to be patient, and you have to speak. You can't get nervous कि नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता, क्या करूँ, पढ़ लूँगी जाके क्या है स्पीड कर रही, मुझे थोड़ी रेलवे में काम करना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आप मुझे रेलवे। और उन्होंने मुझसे मतलब एक पैनल मेंबर थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेलवे के बारे में मुझसे पूछा, और मैं सोच रही हूँ उनको मेरा डैफ नहीं मिला कि मेरे डैफ में मैंने कहीं गलती से रेल लिख दिया है, ये क्यों इतना रेलवे पूछ रहे, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माय डैफ, उन्होंने देखा ही नहीं मेरा डैफ, उनके मन में जो आ रहे हैं पूछ रहे, गाने पूछ रहे, और अजीब सवाल पूछ रहे। बट इट्स जस्ट दैट कि आप उस वक्त आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त शांत हो गए तो आप ऑब्वियसली शांत हो जाओगे, मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और मैंने जितने भी मॉक्स दिए थे वो सारे अच्छे थे, बट मेरा यूपीएससी का जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो बहुत ही ज्यादा खराब था, मतलब कतई खराब था। मुझे लगा 160 के ऊपर वो मुझे नहीं देने वाला है, मतलब मैं इतना खराब था, मुझे लगा 160 के ऊपर नहीं देना, they gave me a 193, which I did not expect from that. So it's all about and it did not happen in one day.
is because starting say when right into prelims, I was asking questions, I was answering, I was speaking in front of the class कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये कैसे करें. So unless you start speaking up, it'll be very difficult कि एक महीने में अपनी पूरी पर्सनालिटी को आप मोल्ड कर बोलने के लिए. So speak up और एकदम बुलंद आवाज में बोलो, जो बोलना है बोलो, और मतलब चुप मत रहो. चुप रहना is not it's not an officer like quality. Like obviously speak relevant, irrelevant बातें नहीं, but you learn to speak up. और बताओ questions? पहले प्रॉब्लम क्या होता है those who can't crack the interview? Those who can't Crack the interview. those who can't crack the interview. या देखो उस रूम के अंदर तो क्या होता है वो किसी को नहीं पता. I think एक चीज होती है nervousness, ठीक है, is when you get nervous because आप इतने दूर आ गए हो, आपको ये टेंशन रहता है कि अगर ये नहीं होता है तो फिर से prelims. So it's a huge burden. But मेरे हिसाब से I think again like I said कि मुझे लगता है हर वो 2000 लोग talented है जो वहाँ पहुँचे. मैं ये नहीं बोल सकती कि वो talented है, they are very talented. पर मुझे जितना मैंने इन्फर किया अपने इंटरव्यू से, इसकी दो चीजें हो सकती है. One is that you get nervous. So आप यूपीएससी के बाहर आप वेट करते हो. तो 1 बजे मेरा टाइम था इंटरव्यू का एंड माय इंटरव्यू स्टार्टेड एट 3:40. ठीक है, सो उतना देर वेट करना इज वेरी इट्स लाइक बहुत टेंशन होता है. क्या पूछेंगे एंड यू नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट, यू डोंट नो आपका चेयरपर्सन कौन है, कोड कौन है, आपको कुछ नहीं पता. बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने मॉक्स लिए काफी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 10-12 लिए बट लिए. और आई थिंक एक वो हो गया कि उसमें मेरा नर्वसनेस कम हो गया. बहुत मॉक्स में मुझे खराब ही बोला गया है. जैसे 1-2 मॉक में मुझे बोला गया था यू विल गेट योर नेम ऑन द लिस्ट बट यू विल नॉट सिक्योर अ वेरी गुड रैंक. बट बाकी आई थिंक दृष्टि जहाँ मेरे लिए उन्होंने बहुत they were very happy with my performance. So एक हो गया कि नर्वसनेस आप कम करिए. नर्वसनेस कम होगा जब आप बड़े लोगों से, 5 सीनियर्स से बात करने लगो और आप कंफर्टेबल हो जाओ. तो मैं अगर अपने यूपीएससी वाले दिन की बात बताऊँ, 1 बजे हमने एंटर किया, डॉक्यूमेंटेशन का काम है और 2 बज गया उसमें और 1.5 घंटे और थे. तो मैं वहाँ चिल कर रही थी, वहाँ फ्रूटी, चाय, कॉफी, लॉटे चोको पाई, बिस्किट्स, मैंने सब खाए, मैं सब खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं एकदम काम माइंड में हूँ कि जो होगा मेरे कंट्रोल में है. वो मुझसे क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता, मैं उस पर टेंशन लेकर कुछ कर नहीं सकती. तो मैंने सोचा चाय कॉफी पीते बैठते हैं आराम से, जो होगा देखा जाएगा. तो आई थिंक एक वो माइंड से इस पूरे ईयर आई वेंट इनटू द जो हम बोलते हैं निष्काम करना होता है ना, कि कीप ऑन वर्किंग, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. ठीक है, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है बट इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज अगर आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं है कि क्या होगा, बिकॉज इंटरव्यू वाले क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं टेंशन लेके क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, मैं स्ट्रेस हो रही. तो मैंने बोला खाओ पियो चिल करो एंड देखा जाएगा जो होगा. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प बिकॉज जब मैं गई मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी. आई वाज स्माइलिंग एंड आई वाज काम एंड आई वाज टॉकिंग टू देम. और दूसरा है जब उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे और मैं बैक टू बैक बोल रही थी सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो. आई थिंक लास्ट तक मैं हंस दी. आई लाइक सर आई डू नॉट नो अबाउट दीस थिंग्स. सो दे स्टार्टेड लाफिंग. सो दे रियलाइज्ड कि आई वाज नॉट आई वाज नॉट crying under the pressure. I did not give in to the pressure. तो आई थिंक उनको वो चीज अच्छा लगा कि बिकॉज आपके ऊपर आएगा प्रेशर, आपके ऊपर डेफिनेटली होगा पॉलिटिकल प्रेशर, आप कहीं भी रहो, तो आप उस प्रेशर में क्या करते हैं, will you able to handle it calmly or do you just crumble under pressure, ये मैटर कर जाता है. तो आई थिंक नर्वसनेस नहीं रहना है और नहीं आता है तो नहीं आता है. मैंने सर को बोला कि सर ये सब पूछा, मुझे तो कुछ नहीं पता. तो सर बोलते हैं कि सिर्फ अनलर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुमको सिर्फ टेंशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक एक और चीज जो चेक करते हैं इज ऑनेस्टी, क्योंकि आप बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे हो. ठीक है, तो आप कोशिश करते हो कि आप हर सवाल का जवाब दें. तो उनको ये देखना है क्या आप इस जंक्शन पे बोल सकते हो कि आप ऑनेस्ट रह सकते हो कि सर नहीं आता मुझे नहीं. और मैंने 10 बार बोला है कि सर नहीं आता, सर नहीं आता, सर नहीं आता, सर नहीं आता. I did not lie to them even once. और जहाँ मैंने guess किया मैंने बोला भी कि sir if I may take an educated guess, I'm not very sure sir, if you may I will want to take a guess. मैंने ये भी बोल दिया कि सर मैं guess करना चाहूँगी, मैंने सुना नहीं है, मुझे पता नहीं, but I will try to take a guess. तो you have to be this honest
कि नहीं आता सर तो नहीं आता, और सर मैं गेस कर रही हूँ या गेस कर रहा हूँ तो सर ये गेस है मेरा, और जहाँ ओपिनियन बेस्ड है वहाँ ओपिनियन बेस्ड। So I think it's all about not giving into the pressure. क्योंकि sir was telling me a story that there was this long back, not now, there was this particular aspirant interview तक वो पहुंची. So he's a very senior person, like he's like अभी वो काफी senior है. तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके टाइप की वो बात कर रहे थे. वो बोल रहे थे कि there was this girl who went for the interview and she was trembling when they were sitting in that round hall. And then he's like, yeah, I had to give her water and everything, that please calm down. But when she went inside, she cried. She cried because she was that nervous. And then she came back and then they told her, calm down. We are just here to talk. But how do you think her interview would have gone if you have cried at this juncture? अगर आप इतने nervous हो गए, तो आप politician के सामने क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं कर पाओगे. So I think they just want to check your honesty and how you handle pressure. I think इतना ही है. आप pressure कैसे handle करते हो? I think that is a make it or break it game. और बहुत लोग यार इंटरव्यू में अच्छा करते हैं, मेल्स में अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए लिस्ट में नाम नहीं आता है. वो भी एक फैक्टर है. Institute guidance के अलावा what are personal habits that one should inculcate? Personal habits. देखो इंस्टीट्यूट गाइडेंस के अलावा एक ही पर्सनल हैबिट आपको कल्टिवेट करनी है, दो एक्चुअली, is keep on working hard, be consistent. So how many of you all are on social media? All of you all are on social media, on IG or like on Insta, Snapchat, TikTok, hopefully not. So like see the thing is कि मैं भी Insta पे थी, but my last post on Insta I guess was in 2018. I don't think उसके बाद मैंने कुछ post किया है, but I think it's for the best. सबसे important है distractions खत्म करो, जो भी आपके distractions हैं. What you know your distractions. Everyone knows their distractions. Unless you end that, you will never be able to concentrate. The first thing. Secondly is that again, body को habitual बनाओ. In the sense that how many of you all sleep late and wake up late? What is the approx time you all wake up and sleep? I generally go to sleep around 1:30 and wake up at 8. Wake up at 8. और बाकी? Before 12 and wake up at before 7. Wake up before 7, that's fine. और? 1 a.m. and 8. और? 2 a.m. 8 a.m. और? 10:30 to 5:30. 10:30, 5:30 you wake up, that's pretty good. आप? 10 p.m. Actually, I'm working in a night shift, like dual shift. So, अच्छा. yeah. So you have no option. बाकी? 10 p.m. to 3 a.m. 3 a.m. you wake up? Okay. So भाई जो 3 बजे उठ रहे हैं या जो 5 बजे उठ रहे हैं और आप जो 8:30 बजे उठ रहे हैं, वो आपसे 4 घंटा ahead है in study. तो जब तक आप पढ़ने बैठते हो, इनका एक शिफ्ट खत्म हो चुका है, which I think is the smarter key. A lot of people say that studying at night is better. I do understand सबका अपना body clock होता है. Problem क्या है कि एग्जाम आपको रात में लेते हैं, एग्जाम आपको सुबह लेते हैं, राइट? तो 9:30 बजे के अराउंड, बिकॉज जिस दिन आपका प्रीलिम है आपको 9 बजे सेटअप पे पहुंचना है. दैट मींस यू विल हैव टू वेक अप. इफ यू लिविंग अर्ली यू विल हैव टू वेक अप बाय 8 मैक्स. अगर आप दूर रहते हो तो भाई आपको तो 7 साढ़े 6 बजे उठना है. तो अनलेस आप अगर हैबिट है आपको 8 साढ़े 8 9 बजे उठने की, आप कैसे उस दिन उठोगे और कैसे अपने आप को रेडी करोगे? आपका बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा. योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट. बहुत जरूरी है अपने बॉडी को उस क्लॉक में ढालना. I think a lot of people don't speak about it, but I think it's extremely important. So I had the same thing. I used to sleep at 2 in the morning and 3 in the morning, and used to wake up at 9:30 and 10 in the morning. And I realized that firstly मेरी sleep complete नहीं हो रही है, which learning difficult हो गया, concentration मुश्किल हो गई. And secondly is that जब मैं exam देने आ रही थी, I was still in my sleepy zone. I was still not very active. और जो लोग भाई 6 बजे उठ रहे हैं वो तो एकदम फ्रेश हो गए and very cheerful morning, and I'm just drowsy. I'm like, how are you so happy? इतनी क्या खुशी है यार कि इतने खुश हो, इतने एक्टिव हो. कैसे एक्टिव हो? So I think one thing is कि first please start sleeping early, start waking up early. Do not compromise on your sleep. Let people say say 4 घंटे सो नहीं, सो लो.
जरूरी है, एक दिन की बात नहीं है, साल भर की बात है, राइट? एक दिन होता तो आप कॉम्प्रोमाइज करते, आपको साल भर नहीं करना है यार। साल भर क्या, साल भर आप प्रिपेयर करोगे, फिर एक साल आपका एग्जाम ही चलेगा, तो आपको तो 2 साल करना है ये चीज, तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे? तो अपने स्लीप पैटर्न को पूरा करो, स्लीप 6 to 8 आवर्स जो भी आपके हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगता है, बट वेक अप अर्ली, very very important wake up early, like maximum I think 7. So I'll tell you, if so I used to work on weekends, so I had my weekdays free. I would get up at 7, and I'm not talking about myself, I'm talking about everyone. Priya, in fact, she used to get up way earlier. So I used to wake up at 7 in the morning, and within 15 minutes I would sit with my book. So the first thing I did is not use my phone. मैं कभी इंटरनेट ऑन ही नहीं करती थी सुबह, मैं 10 बजे के बाद ही ऑन करती थी, चाहे जिसका कॉल हो चाहे जिसका मैसेज हो, ठीक है? बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट, 5 मिनट के लिए इंस्टा यूज कर लेते हैं, 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप देख लेते हैं, 5 मिनट 50 मिनट हो जाएगा। तो पहले 15 मिनट में मैं पढ़ने बैठ जाती थी। आई एम नॉट सेइंग ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबका अपना अलग रूटीन होता है, आपको अपना बनाना है, बट आई वुड सिट बाय 7:15 अप्रॉक्स, आई वुड सिट विद माय बुक्स एंड देन आई वुड टेक अ ब्रेक ऑब्वियसली, but I think I continued this till 1:30. तो ये मेरा एक सेशन होगा, and then I would sit at 4, and then I would continue that till 9:30, 10. Then 1 I used to chill, 11:30, 12 तक मैं सो जाती थी, and then again. So this I did every single day, except for Sundays, जिस दिन मैं मॉक देती थी, और मेरा ब्रेक क्या होता था? Sundays, जिस दिन मैंने मॉक दिया वो मेरा ब्रेक डे होता, बस। और बाकी ये चीज मैंने month on month किया है regularly. So I don't know the number of hours that forms, but मुझे पूरे दिन में 2 घंटे का ही ब्रेक मिल पाता था. 2 to 4 was my break time. Just like I had to take a bath and I had to eat my lunch and I had to I had to chill if I had to watch TV. ये सब मैं 2 घंटे में करती थी. So आपको आपकी रूटीन उस हिसाब से बनाना पड़ेगा. But मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है is try to wake up early because आपके एग्जाम्स सुबह होते हैं, so your body should be active by that time. If your body is not active by that time, कहीं ना कहीं वो आपके पेपर में impact करता है. And we are trying to not cater to only one aspect. We are trying to develop a whole understanding कि हम कैसे even 2 मार्क भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क में रैंक बदल रहा है, 1 मार्क में रैंक बदल रहा है, 0.5 में रैंक बदल रहा है. जो 164 है, मेरा 165 है, जो 164 है उसका 0.5 ज्यादा है, जो 163 है उसका 1 मार्क ज्यादा है, फिर जो 162 है 0.5 ज्यादा है. तो इतने जल्दी जल्दी रैंक बदल रहा है. तो मैं 10 मार्क ला देती या मैं 20 मार्क ला देती तो मैं आ जाती टॉप 100 में आराम से. सो इतने छोटे छोटे मैटर्स में बात, तो यू विल हैव टू डेवलप अ होल अंडरस्टैंडिंग. तो अपने बॉडी क्लॉक को शिफ्ट करना, व्हाटएवर सिंस यू ट्राई टू बी एक्टिव इन द एग्जाम टाइम जो हमारा रहता है वो पता लगाओ कि एग्जाम क्या ड्यूरेशन है. और ऑल्सो वन मोर थिंग आई विल से इज दैट प्रीलिम्स में हमें 2 घंटा बैठ के लिखना होता है, राइट? सो अगेन सूट योर बॉडी और ट्रेन योर माइंड टू सिट फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच. बहुत लोग क्या करते हैं, 50 मिनट पढ़ते हैं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 50 मिनट पढ़ते हैं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. सूट करता होगा उनको, पर मेरे हिसाब से अनलेस यू कैन सिट फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच, आप पेपर नहीं लिख पाओ. तो आप 2-2 घंटे के पैटर्न्स फॉलो करो. जब आप मेल्स में जाते हो आप 3-3 घंटे के पैटर्न्स फॉलो करो. उस हिसाब से यू कीप ऑन शिफ्टिंग एट अ स्ट्रेच पैटर्न. 2 घंटे एट अ स्ट्रेच, 3 घंटे एट अ स्ट्रेच, बिकॉज एग्जाम के लिए आपको वही करना है, एट अ स्ट्रेच ही बैठना है, उसमें तो कोई ब्रेक नहीं है. तो वो चीज ट्राई करो टू गेट यूज्ड टू दैट. आई थिंक बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट बट वेरी हेल्पफुल. Is the preparation manageable with college? Yes, a lot of students are managing it with college. क्या करते हो आप? English honors. इंग्लिश ऑनर्स बहुत मैनेजेबल है, वेरी वेरी मैनेजेबल. कौन से कॉलेज में? Vivekananda College. अटेंडेंस कंपल्सरी है डेफिनेटली. और आई थिंक आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आपको ऐसे में एक एज मिलेगा, डेफिनेटली एक एज मिलेगा. और ऐसे में वो भरपूर मार्क्स देते हैं, जीएस में वो उतना नहीं देते हैं, बट ऐसे में वो 125 130 वो देते हैं. तो आप आराम से जॉब तो ला सकते हो, मैनेजेबल है. इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली. How to choose optional subjects? Have you chosen your optional? What's your optional? आपको economics. देखो optional again it's
सबका नहीं फॉलो करता है, ठीक है। मेरा सोशियोलॉजी था कॉलेज में, मैं क्लास 11 से सोशियोलॉजी पढ़ी हूँ, तो मैंने ऑप्शन में वही चूज किया बिकॉज आई लाइक द सब्जेक्ट, आई एंजॉय द सब्जेक्ट. सो ईदर you all can choose what you all had in college. I done BCA. So देखो अगेन there are certain subjects, बहुत लोग ना मीडिया भी लेके और पढ़ते हैं तो उनका नहीं मैच होता है कुछ भी. So there are certain subjects which are treated as very common and easier to understand. So for instance there is PubAd, okay? There is PSIR, there is Socio. Socio I don't usually recommend. जिनका नहीं है मैं नहीं रेकमेंड करती, बट जिनका मानो कोई ऑप्शन नहीं मैच होता है, मेरे हिसाब से माय पर्सनल व्यू इज PubAd इज अ वेरी गुड ऑप्शन. फर्स्टली बिकॉज रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, सेकेंडली सिलेबस आपका GS2 से बहुत ओवरलैप करता है, मतलब ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है. 50% सिलेबस आप अपना GS2 में ही खत्म कर दोगे, तो आई थिंक वो काफी होता है. बट इट्स अप टू यू इन द सेंस कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स चूज करो. जैसे मेरा सजेशन रहता है PSIR चूज करो, PubAd चूज करो. I think these are the two good subjects that जिनका कोई ऑप्शन नहीं मैच होता है वो इनमें जा सकते हैं. सेकेंडली इज सिलेबस देखो, इसका वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस देखो, PYQ देखो, ठीक है, तभी आप ऑप्शन डिसाइड कर पाओगे. अनलेस यू नो द सिलेबस और अनलेस यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपसे पूछा क्या जा रहा है या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. और थोड़े ना जो कुछ टॉपर्स हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन के, उनके 1-2 वीडियोस देखो. I think you can talk to Sir because I think अपने टाइम में he was the all India topper in PubAd. So उनसे आप बात कर सकते हो. पर मेरे हिसाब से PubAd is a very good option for anyone who has no problem because GS2 से overlapping है, simple. I think PubAd is very nice. मेरे personal opinion से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. Anything else? How do I read news? How to read newspaper? Very important. कौन सा newspaper follow करते हो? पढ़ते हो newspaper? Sometimes. Not consistent. Honest बताओ, मेरे को भी इतना पसंद नहीं है newspaper पढ़ना, बहुत जान पे आती है यार. It's very, इतने छोटे फॉन्ट पे लिखा होता है. Plus for interview I had to read these 2 newspapers all together. But देखो क्या है, आजकल मैगजीन्स अवेलेबल है, राइट? पर क्या है कि आप महीने के मैगजीन को लेकर बैठोगे ना तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा और आपको फिर उसको रट्टा मारना पड़ेगा. विद न्यूज़पेपर्स क्या है, 2 बेनिफिट होते हैं. दैट इज व्हेन यू सिट विद द मैगजीन, आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सुना है, हाँ ये हुआ है. दूसरी बात ओपिनियन फॉर्मेशन, ठीक है. आप इंटरव्यू के पहले 1 महीना पेपर पढ़ के ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकते, पॉसिबली नहीं है, राइट? तो वो हैबिट होती है. मैं अगर आपने अभी तक पेपर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं सजेस्ट करूंगी स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, डोंट गो विद हिंदू, बिकॉज हिंदू थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट है, ठीक है. इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली इजियर है, इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू रीड एज वेल. और मैंने भी मोर और लेस इंडियन एक्सप्रेस ही मैं बोथ पेपर्स फॉलो करती थी, इफ आई बी ऑनेस्ट, बट मोर और लेस रिलाइंग ऑन इंडियन एक्सप्रेस. So more or less relying on Indian Express is a good source. So एक चीज मैं बोलूँगी इस हैबिट बना लो पेपर पढ़ने की जहाँ आपको नहीं समझ में आता है. देखो पहले 1 महीने आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक. So for the first 1 month you will almost take 2.5 hours to 3 hours. Wait, I'll get it. So the first 1 month, 2 month आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है. डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट एजिटेटेड. बहुत लोग एजिटेट हो जाते हैं, मैं खुद हुई थी और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हो जाते हैं. 3 घंटा पेपर में जा रहा है, extremely annoying. It's better to read pick up a magazine, read 150 pages and be done with it. But आपका ओपिनियन नहीं बनेगा उससे, आप कभी नहीं बना पाओगे unless you start reading. आप इन डेप्थ नहीं समझ पाओगे. मैं आपको नोट्स बनाने की सजेशन दूँ, ठीक है. नोट्स तब बनाए करते थे जब मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो नोट्स मत बनाओ, वो फालतू का डबल मेंटर है. बी अ लिटिल स्मार्ट, कीप ऑन रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. और पॉलिटिकल न्यूज़ आप छोड़ सकते हो, तो न्यूज़पेपर का भी एक सेशन आप करवाइए और डोंट वरी अबाउट दैट, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. अब मानो रिकॉर्डिंग है तो आई विल नॉट से, बट मानो कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, डोंट, it does not matter. For instance, here I can't
comment just by instinct to talk about politics, but I will refrain. पर मानो कोई political leader ने एक comment पास किया, वो important ही नहीं है, छोड़ो उसको, किया तो किया, वो पेज ही skip कर दो, जहाँ politics की बात है, not important. पर मानो क्या होता है कि for instance मानो ये होता है कि अब ये आपको पता है कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, ये पता है, ये पढ़ा है, मालदीव से झगड़ा हो गया. अब क्या आपको ये जानना जरूरी है कि उनके मंत्रियों ने क्या कहा और इन्होंने क्या रिएक्ट किया? नॉट रेलेवेंट. इंटरव्यू देते तो रेलेवेंट हो जाता. प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्टेंस ऑफ लक्षद्वीप. फॉर प्रीलिम्स आल्सो इम्पोर्टेंस भी आपको नहीं पढ़ना है. लक्षद्वीप में ट्राइब्स क्या है, राइट? 8 डिग्री चैनल क्या है, 7 डिग्री चैनल क्या है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, अंडमान पड़ा है, लक्षद्वीप पड़ा, और वो आपके एनसीईआरटी में कभी नहीं है, ठीक है? कोई पीवीटीजी है या नहीं, इस हिसाब से आपको पढ़ना है. आपको पूरा अभी इंडिया मालदीव्स रिलेशन में नहीं पढ़ना है, राइट? वो भी मीन्स का एस्पेक्ट है. अभी क्या पढ़ना है, मालदीव्स कितने दूर है, वो भी एग्जैक्ट डिस्टेंस में, कोई डिग्री है क्या जो इनको सेपरेट करता है, कोई वाटर बॉडी है क्या इनके बीच में, ऐसे. मानो अभी हूथीज का अटैक चल रहा है रेड सी में, राइट? मेल्स की तरफ हम जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन लेट्स से प्रीलिम्स वाइज रेड सी को क्या क्या बॉर्डर करता है, कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को क्या कनेक्ट करता है, हूथीज क्या है, हूथीज कौन है, कौन से कंट्री में बिलोंग करते हैं, बस. और किसी पोर्ट पे अटैक किया है तो वो पोर्ट कहाँ है, कैपिटल ऑफ यूएन क्या है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ के तौर पे आते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव. And for editorials, you only have to read to form an opinion कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या अच्छा है या खराब है. लेट्स सी, ठीक है? आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे ना एडिटोरियल तो आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये होगा कैसे. फॉर इंस्टेंस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाएंगे, राइट? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पता है आपको. अब इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हमने रट लिया कि ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट. लेकिन मेंस में आपसे अगर पूछेगा प्रॉब्लम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये मैंने एडिटोरियल पे पढ़ा था कि किसी ने बोला था जब आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चूज कर रहे हो तो वो थर्ड लैंग्वेज क्या होगा, हाउ विल यू डिसाइड. फॉर इंस्टेंस मणिपुर में आपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है? मणिपुर में थर्ड लैंग्वेज क्या रखोगे, लड़ाई इसकी चल रही है, ये कौन डिसीजन लेगा? सिलेबस कौन बना रहा है, सिलेबस क्या गवर्नमेंट बना रही है? अगर गवर्नमेंट सिलेबस बना रही है तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, कि आप पॉलिटिकल मोटिव से नहीं बना रहे. ये सब मेरे अपने ओपिनियन से, ये कहाँ से मैंने लिया, एडिटोरियल. और आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है, बिकॉज ना सेम चीज. और आप 1 महीने बाद देखोगे ना, अगर आपने 1 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ा, सेम न्यूज रिपीट हो रहा है, सेम न्यूज बार 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 बार. अब फॉर इंस्टेंस रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल से चल रहा है, 2 ईयर्स. तो अब आप क्या नया पढ़ लोगे, तो अब आप वो एडिटोरियल बहुत जल्दी घुमा लेते हो कि अच्छा ये कुछ नया एंगल आया है, कुछ नया पॉइंट हुआ है. सो 1 महीना आपको टाइम लगता है, 2 महीना थोड़ा टाइम लगता है. बाय थर्ड मंथ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर इन 40 मिनट्स और 30 मिनट्स, बिकॉज न्यूज इतना रेपिटेटिव होता है. हर 1 महीने में आप पढ़ोगे आरबीआई ने रेपो रेट में कुछ चेंज किया. अब आपने जब पढ़ लिया रेपो रेट तो आप वो न्यूज ही इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो रिपीटेड है, वो हर महीने आपको मिलेगी. कितना पढ़ोगे, कितना सेम न्यूज कितनी बार पढ़ोगे. So the first 2 months may be hectic, but by the third month आपका टाइम हाफ हो जाएगा. Okay. और अभी मेरा सजेशन है only stick to one paper, which I will suggest Indian Express is better for people who are just starting the और अच्छा है Indian Express is very nice. ठीक है, पर notes मत बनाओ. How to write an answer? How to write answers वो आपको सिखाया जाएगा. देखो आंसर राइटिंग का एक मेजर फैक्टर इज कंटेंट. अनलेस आप कंटेंट याद करते हो आप आंसर राइटिंग कर नहीं सकते. उसके लिए आप पढ़ते हो. फॉर इंस्टेंस मानो सिंपल क्वेश्चन है, आई एम आस्किंग यू, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, हाउ विल यू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन. बहुत जनरल है, आज भी लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे. Infrastructure is व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, cutting down of plants and trees, reduction of forest land, ओके. और recent incidents. यस, और so you can if I frame it, firstly the definition will come, then
as you said, the recent instances of deforestation might come. Then what are the Facts. what are the steps taken by the government to combat deforestation, and as a society what we can do to combat General है. deforestation? लेकिन मैं इसमें आपको मार्क्स क्यों दूंगी ज़्यादा? wildlife is You know, I'll tell you something. देखो हम सबको ही आइडिया, हम सबको पता है राइट. अब आंसर आइडिया क्या है मुझे भी यही पता था. फिर मैंने किताब उठाई और मैंने पढ़ाई की. तो मुझे ये पता चला deforestation is not simply cutting down of trees, it is also the change in land use. मानो हमने पेड़ काट दिए और कोई नया पेड़ लगा दिया, क्या वो डिफॉरेस्टेशन है? No. तो आप कैसे बोल रहे हो कि सिर्फ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन? Now this is what will distinguish you from any other general candidate. That deforestation is cutting down of trees along with change in land use. मतलब अब वो land पेड़ के लिए नहीं यूज होगा. Slash and burn. Now slash and burn is also not deforestation. because अब फिर वहाँ पे पेड़ लगाओ, right? So again, these are the very little nuances that add, 0.5, 1, 2 marks in your answer. हम फैक्ट्स पढ़ते हैं. अब किसी को याद नहीं है, ठीक है? मुझे भी नहीं पता है फ्लड्स के बारे में. अगर मुझसे कोई पूछे कितना होता है, मुझे नहीं पता. लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं कि भाई 12% ऑफ द कंट्री इज अंडर फ्लड्स. मैंने ये डेटा दे दी, ठीक है? आंसर राइटिंग का एक बहुत सिंपल तरीका होता है. आपसे हर चीज जो वो आप सीखोगे, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट. पहले तो पढ़ो, पहले तो फैक्ट्स याद करो, ठीक है? पहले तो मेजर्स याद करो, ठीक है? दूसरी बात क्या होती है, करंट अफेयर्स से लिंक करो. अब करंट अफेयर्स में कहीं हुआ होगा डिफॉरेस्टेशन, कहीं हुआ होगा फॉरेस्ट फायर, कहीं हुआ होगा फ्लड्स. आप जितने रीसेंट एग्जाम्पल कोट करोगे उतना बेहतर है आपके लिए. ये सब जितने रीसेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हो उतना दो, और रीसेंट एग्जाम्पल आपको याद भी रहेगा. The third is that in answer writing, so I tell you, for instance, एक question है, ठीक है? That there was this question that forest fires, ठीक है? ये मैंने एक मॉक में दिया था. Forest fires is very common in India. Okay, forest fires is very common in India. What are forest fires? What are the measures that you will take to control forest fires? Okay, आप इसका starting introduction क्या लिखोगे? तो Describing forest fires, how is it ठीक है, caused, causes, और anyone else? and causes Introduction, starting. देखो हर आंसर हम आंसर राइटिंग पूरा डिस्कस करेंगे, उसका पूरा एक सेशन होता है, ठीक है? आंसर राइटिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं. एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, आपको पॉइंट्स को लिखना होता है. बट यहाँ पे एक लाइन स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन की, दैट फॉरेस्ट फायर्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया. क्या होता है? एंड फिर है व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स. तो हम सीधा कहाँ जंप कर रहे हैं? व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स. वी आर नॉट एड्रेसिंग द लाइन that forest fires are common in India. UPSC ने क्यों दिया है वो लाइन? आपको हर लाइन को एड्रेस करना है. It is a very natural thing कि हमसे पूछा गया what are forest fires, हमने लिख दिया. But forest fires are very common in India. इसको क्या आप एड्रेस नहीं करोगे? UPSC ने थोड़ी ऐसे दिया है. वो चाहता है आप इस लाइन को भी टैकल करो. तो भले ही आप इसमें एक लाइन लिखो जहाँ पे आप लिखो कि let's say 33% of the country is under forest fires. मान लो, I don't remember the exact data. ठीक? तो आपको वो भी लेना है क्योंकि आपने उसको भी एड्रेस किया है. तो इतने डिटेल्ड सेशंस में आपको जाना पड़ेगा. हर एक वर्ड जो उसने दिया आपको उसको टैकल करना पड़ेगा. ठीक? सो आंसर राइटिंग, डोंट वरी, वी लर्न अबाउट आंसर बिकॉज़ इट्स यू हैव टू प्रैक्टिस. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर आंसर राइटिंग. तो हम उस पे पूरा सेशन करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है? बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब भी आंसर राइटिंग सेशन होगा काफी डिटेल्ड होगा. हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, चार्ट्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में हर एक वर्ड को कैसे एड्रेस करें, हर चीज को डिस्कस. ठीक है? So, like we're discussing newspapers, as you said that it's not like recommended to make notes. So what happens is like I am following newspapers say for last 2-3 years almost regularly, but when I'm reading it, I remember it, of course. But say 10 months down the line, sometimes I forget the exact facts. So, like, is it natural that this might happen? Or मैंने अभी दिया है यार, अक्टूबर महीने में दिया है. अब मैं आपको बोलूं कि मुझे याद नहीं है क्या डेट है.
क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा सबका। देखो मैं क्या करती थी मेंस के प्रिपरेशन के दौरान, मान लो एक फैक्ट है कि 12% ऑफ द कंट्रीज अंडर फ्लड, तो मैंने ना क्या किया था, सेक्शन वाइज बना लिया था। एक पेज GS1, GS2, GS3, GS4, 4 पेज होते थे, और ये GS3 का पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं वहां पे लिख लेती थी कि ओनली 12% ऑफ द कंट्रीज अंडर फ्लड। तो मेंस के पहले मैंने क्या किया, ये 4 शीट को रिवाइज किया, और ये 4 शीट में बस कुछ नहीं था, फैक्ट्स था कि 37% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, 33% फॉरेस्ट हमारा टारगेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, GDP ग्रोथ 10% है। क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा, आप कहाँ कहाँ आपने लिखा आपको याद नहीं रहेगा, तो आप एक शीट बना लो जो आपको लगता है कि बहुत, फॉर इंस्टेंस वेस्ट बंगाल चाइल्ड ब्राइड्स में बहुत हाई है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 40 का NFHS 5 का डेटा था कि 44% ऑफ द वुमेन वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो ये मैंने लिख लिया था GS1 के अंदर, और फिर मैंने बस रिवाइज कर लिया। लास्ट में अब 4 शीट रिवाइज करने कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर मैक्स, बट दिस इज हाउ यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग फैक्ट। तो अगर आपको लगता है कोई बहुत रेलेवेंट डेटा है आप उसको लिख लीजिए एक शीट पे। And like supposedly I'm asking this, like, suppose something comes in the mains and I forget say exact एग्जैक्टली data. लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। किसी को नहीं याद रहता 37.8 है या Yes. अराउंड 37%, अप्रोक्सीमेटली 37%, ठीक है। नहीं याद है वो भी नहीं याद है 37 या 35 है, इन मिड 30 बस। यूपीएससी आपसे नहीं यूपीएससी को पता है गूगल एग्जिस्ट करता है, उसको पता है आप सर्च करोगे, उसको बस ये जानना है कि डू यू हैव अ वेग आइडिया और नॉट। वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे एग्जैक्टली, बट आप जब भी लिख रहे हो आप लिखो अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, व्हिच शोस कि आप एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहे। आपने खुद बोल दिया कि मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ। और those who are silent, Since I'm working since last 3 years, I wanted to know how will I start from scratch, and also wanted to know from you that you were working with your preparation. So how were you able to manage, your work pressure and all this preparation? see my working style was different in the sense that I used to work on weekends. So I had the weekdays to myself, and I did have a little content work, but because it was related to UPSC, तो मेरे लिए आसान था। मैं 7 दिन 24 घंटे इसी के आसपास ही नहीं, मुझे शिफ्ट मैंने नहीं किया किसी और फील्ड में, तो मैं इसी में थी, तो मेरे लिए एडिशनली वैल्यू था इवन इफ आई वर्क। आप जो काम करो आई थिंक आप नाइट शिफ्ट कर लो, राइट? Yes, I'm working as a data analyst. अच्छा, रात में आपका टाइमिंग क्या है वर्क का? You shift mostly 8 p.m. to around 4 a.m. 8 p.m. to 4 a.m. and then you wake up around Around in the afternoon. see थोड़ा आई थिंक 8 घंटे की नींद तो आपको नहीं मिलेगी जो बात है, तो आप 8 घंटे में तो लेकिन 6-7 घंटे ले लो। आई थिंक इफ यू स्टडी फ्रॉम 12 to 7 at a stretch you get 7 hours. I'm planning to take a break from my job because That would be very I think that would be very the very question is how will I change myself from that drastic cultural change from a working आई professional. थिंक ना एक टाइम लिमिट होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन कहते हैं कि कोई चीज अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो ना तो बॉडी यूज्ड टू, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक इट इज 21 डेज। या सो आई थिंक क्योंकि मैंने तो बोला ना मेरी हैबिट ही थी सुबह 10 बजे उठती थी मैं, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो वो शिफ्ट करना था 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, कभी कभी 5 बजे उठना है। प्रीलिम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहा था 5 बजे उठती थी मैं, तो वो हो जाता है। इफ यू टेक अ ब्रेक ना आपको इनिशियली तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होगी, यू विल नॉट बी एबल टू बी दैट प्रोडक्टिव। सो माय एडवाइस इज डोंट थिंक कि जिस दिन आपने सुबह उठने की कोशिश की उस दिन आप एकदम कमाल कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेचुरल। हो सकता है उस दिन आप 10 घंटे भी बैठो किताब के साथ, आपकी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे वाली ही होगी, बट आई थिंक दैट्स इज हाउ यू मोल्ड योरसेल्फ। मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठे और एकदम एनर्जाइज्ड, आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगा। आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू चेंज देयर पैटर्न, बट आई थिंक 2 चीजें हेल्प कर जाएगी इफ यू टेकिंग क्लासेस। तो एक वो हैबिट हो जाएगा दैट यू विल बी इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप सीख रहे हो, जहाँ पे आप उन लोगों के साथ हो। और ऑनेस्टली बता रही पीयर प्रेशर बहुत बहुत काम करता है। फॉर मी इफ आई डिड नॉट
अगर मुझे रैंक 1 नहीं आता था मैं पिस्ड ऑफ हो जा रही थी। आई लाइक कि व्हाई डिड आई नॉट गेट रैंक 1, आई शुड हैव बीन रैंक, मतलब मॉक नहीं मैं बता रही हूँ। और मैं ही नहीं, सब सब सार्श प्रिया एवरीवन ऑब्वियसली सबको रैंक 1 चाहिए, क्योंकि अगर आप 50 लोगों में टॉप 5 में हो तब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। 50 लोगों में अगर आप 50वें रैंक पे हो तो पॉसिबल नहीं है। सो माय एडवाइस इज कि स्टार्ट डूइंग दैट एंड डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। ये मत सोचो कि फर्स्ट डे सेल्फ से मैं 10 घंटे नहीं हो पाएगा। Give yourself a transition time of 1 to 1.5 months, and I think it will be sufficient enough for you to change your entire pattern. And if you come to class, attend the classes regularly. When you see others, because आपको पता है आप सारे एक दूसरे की competition हो, जो बात है, right? ऐसा नहीं है कि सारे लोग एकदम hopefully हो जाए, but कोई ना कोई तो सीट छोड़ेगा तब जाके आपको सीट मिलेगा, ये बात है। तो आप जब देखते हो ना सामने वाला आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो एक प्रेशर आता है, और आई थिंक आना भी चाहिए। फ्रेंडली होना, फ्रेंड्स बनाना तो वेरी गुड थिंग। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ दे रहे हैं उनका भी हो जाए। आई वुड लव टू बी इन ट्रेनिंग विद देम, बट द थिंग इज इट्स नॉट, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हमें जो चाहिए हर वो चीज़ तो मिलेगी नहीं, बट आपको वो एरोप्लेन वाला है ना कि सामने वाले की सुरक्षा करने से पहले अपनी को सिक्योरिटी वाला है, तो अपने आप को पहले देख ले, अपना टॉप रैंक सिक्योर करो, उसके बाद दोस्तों का सोच लेना कि ठीक है सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फर्स्ट नहीं आए, ये आइडिया हमेशा रखो, फर्स्ट आप ही को आना है और बाकी आए सेकंड थर्ड जिनको आना है, अच्छी बात है। But give yourself the transition time and don't stress a lot over it. Time लगेगा, it's very natural. To take that time. And suppose someone has given main self prelims in English medium, and क्या वो interview हिंदी में दे सकता है? I'm not very sure, but I don't think so. I think medium आपका matter कर जाता है। आपने मेन किस में का एक बार चेक करना पड़ेगा। I haven't really checked कि मतलब हिंदी मीडियम में आप पर मुझे नहीं लगता है, बिकॉज आई थिंक वो रहता है ऑलरेडी कि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश ही चलना पड़ता है। बट अगेन इट्स विद प्रैक्टिस एंड टेलिंग यू, क्योंकि हम सबकी हैबिट है ना कि हिंदी वर्ड्स हम यूज जो भी जिनका भी जो रीजनल लैंग्वेज है कि हम स्विच करते रहते हैं बैक एंड फोर्थ टू इंग्लिश हिंदी। सो इंटरव्यू के पहले क्या है कि यू विल हैव टू स्विच टू कंप्लीट इंग्लिश, फॉर मी एटलीस्ट आई से कि आपको कंप्लीट इंग्लिश, और मुझे हैबिट है कि जैसे आपसे भी मैं बात कर रही हूँ तो हिंदी इंग्लिश हो रहा है, तो वो चीज अगेन इट कम्स विद प्रैक्टिस, कैसे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, वो भी अगेन बिकॉज आपके पास टाइम रहता है मेंस के बाद, तो आई थिंक 2 महीने में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, 2-3 महीने में ना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है कि ओनली हाउ डू यू हैव अ कन्वर्सेशन ओनली इन इंग्लिश, तो वो लोग मतलब वो हो जाता है। Just don't stress out. I mean, stress will add to your, negative हो जाएगा तुम्हारा जितना भी मेहनत है, तो stress मत लो, जो if you work hard हो जाएगा, just do your best. My only advice is that keep on doing your best and leave the rest. आप रिजल्ट्स नहीं डिटरमाइन कर सकते, आप इंटरव्यू की क्वेश्चंस नहीं डिटरमाइन कर सकते, आप प्रीलिम्स के पेपर को नहीं डिटरमाइन कर सकते, सो आपका ओनली काम होना चाहिए कि मैं अपने तरफ से बेस्ट देते हैं और देन वी सी व्हाट हैपेंस बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है एंड आई कैन टेल यू दैट ये और किसी एग्जाम के साथ नहीं होता है, बट यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको नॉलेज तो बहुत देता है एंड नॉट इररेलेवेंट नॉलेज, नॉट लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री कभी सीखा था, मैंने कभी लाइफ में नहीं यूज किया, इट्स नॉट दैट, प्रॉपर नॉलेज जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हो, जो आपको एक्चुअली अवेयर बनाता है, राइट? लाइक हिस्ट्री जानना, ज्योग्राफी जानना, इकोनॉमी के बारे में समझना, इट जेन्युइनली मेक्स यू स्मार्ट, इट जेन्युइनली कहीं ना कहीं तो वो ऐड हो जाएगा, दैट आई कैन गारंटी। कि ऐसा नहीं कि ये पढ़ाई आपकी वेस्ट होगी, कभी नहीं वेस्ट होगी, बिकॉज यू जेन्युइनली इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, ठीक है, ऐसा दिखावे के लिए अगर सच्ची में प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको अब स्मार्ट तो बनी रहोगे और उससे आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। और यूपीएससी के साथ साथ मेरा हमेशा सजेशन रहता है स्टेट देते रहो, बिकॉज एक बैकअप रहता है तो हमेशा, एंड पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, मोर और लेस अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो ना तो डब्ल्यूबीसीएस का कर ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और आपसे डब्ल्यूबीसीएस भी दो, जो मैंने देते रहो स्टेट एग्जाम,
मैंने शायद CAPF एंड ऑल का भी दिया था। मैंने रिजल्ट भी नहीं चेक किया, मैंने सोचा मॉक की तरह बैठ के दे देते हैं। I did not even see the result that I cleared, or I don't even remember. मैं बस मॉक समझ के गई थी, just to get into the habit कि मैं एग्जाम हॉल में जाके नर्वस ना हूँ। तो मैं हर एग्जाम में जाके बैठ जाती थी, बैठ जाती क्या है, फ्री तो है, दे देते हैं। Ma'am, so like as you mentioned that your life was also not a very smooth life, you also had struggles. So how did you cope up with failures, and if you had any plan B apart from UPSC? Firstly, I had no plan. ठीक है, मैं सिंपल सोशियोलॉजी ऑनर्स की ग्रेजुएट हूँ, और जिनको नहीं पता है सोशियोलॉजी ऑनर्स में कुछ ज़्यादा जॉब्स है नहीं अवेलेबल, ठीक है, मार्केट में। तो एक तो वो रिग्रेट था मन में कि to my mom and dad, I was very good at academics. मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में बचपन से, so my mom and dad wanted me to give NEET and become a doctor and all of that, and I did not choose that, and I chose humanities. तो मुझे पिछले 2 साल में काफी रिग्रेट हुआ है कि शायद बड़े तो बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए, इतना रिबेलियस होना सही नहीं है। बहुत बारी थॉट्स आए हैं कि बड़े हैं, मुझसे कुछ सोच के ही बोला होगा नीट कर लेते हैं, अभी तक तो सेट, तो बहुत आते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने प्रीलिम्स के बाद सबको बोला कि सर नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू अपीयर। मेंस के बाद मैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, इंटरव्यू के बाद मैंने फिर सर को बोला कि सर नहीं हो रहा है, 14 अटेम्प्ट हो गया है, नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं बैठ रहा है, डन विद UPSC, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आई डोंट केयर, मतलब वो एटीट्यूड हो गया। आई थिंक दिन में एक बार तो रिग्रेट होता था कि क्यों लिया मैंने ये, क्या किया मैंने, क्यों वेस्ट किया अपने एकेडमिक लाइफ पर। आई एम वेरी ऑनेस्ट, बहुत आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मैं एकदम नहीं, मैं एकदम होपफुल नहीं थी, जो बात है, मैं रिग्रेट भी बहुत करती थी, बट आई थिंक द थिंग इज कि UPSC लाइक ऐसे बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है, नॉट ओनली एकेडमिकली बट आल्सो पर्सनालिटी वाइज, एंड एक होप आई डोंट नो कैसे होता है, बट एक होप आ जाता है बिकॉज वो आपको it will form. जैसे एक मेरी फ्रेंड है, she's studying to IPS, so me and her were talking and she was like कि UPSC addictive तो बहुत है, उसका छठा अटेम्प्ट है इस साल, तो she's like UPSC addictive बहुत है। I was like yes, once you get into it you don't feel like getting out of it because the things that you learn and the effort that you put in, you always have this hope which I think is very good for personality कि आप ऑप्टिमिज्म में ही रहते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, आप रोगे नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, आप रोगे भी, आप निराश भी होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, ये फैक्ट है, और ये आप किसी से भी पूछो, पर वो ऑप्टिमिज्म हमेशा रखो लाइफ में, ठीक है, हमेशा वो ऑप्टिमिज्म रखो, बिकॉज मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, जो आप यहाँ सीखते हो ना वो वेस्ट तो नहीं होगी, एंड यू विल ऑलवेज हैव मी हियर बिकॉज आई एम ऑलवेज एसोसिएटेड हियर, आई हैव स्टूडेंट्स हियर, and you always have the mentors to push you because I don't know how many times I've told sir कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो मेरे को करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, and the number of times he has told me no, you will be able to do it. So I think when I did not have belief in myself, my teachers had a lot of faith in myself and they're like कि no, you dedicated, तुम्हारा नहीं होगा तो किस, मतलब उनको बहुत ज्यादा बिलीव था। So I think जब आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो बहुत जरूरी है कि कोई आप पे भरोसा करे। I think that keeps you driven and वो चीज मुझे I think सर से काफी, both the teachers से काफी मिला है। So I think and just don't go slow, it'll work out, it'll take time but it'll work out, टाइम लगेगा, but अगर आप सच्ची में मेहनत कर रहे हो, मतलब ऑनेस्टली अगर मेहनत कर रहे हो, दिखावे का नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली वर्कआउट करेगा, डेफिनेटली। और अटेम्प्ट का बर्डन छोड़, वो बर्डन है मैं जानती हूँ, छोड़ दो उसको, वो बर्डन मत लो, forget it, what happened has happened, it's in the past, छोड़ दो। How many months one should require for preparation from scratch? आपके पास 1 साल है, 1 साल है, बहुत है, जेन्युइनली पढ़ोगे ना, अगेन कंसिस्टेंसी के साथ, तो मोर देन इनफ, बट तरीके से, ठीक है, डोंट रन आफ्टर सोर्सेस, डोंट रन आफ्टर व्हाट पीपल टेल यू, डोंट टॉक टू एस्पिरेंट्स हु डोंट नो अबाउट द सिलेबस,
मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो. If someone is in the preparation for years and the prelims is only not able to clear, so do we start from scratch? Because देखो, you have given almost 3 prelims. You given 3 prelims. Sides. I'll tell you about a friend. ठीक है, she's also currently in IPS. I think उनका 5 prelims नहीं हुआ था. ठीक है, छठे prelims में she got IPS. So firstly is identify कि prelims क्यों हुआ है. सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर 3 prelims नहीं हुआ है, जैसे मुझे 2 prelims में समझ आ गया कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, कि मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है. तो मैंने तुरंत इस पे वर्क किया, मैंने ज्वाइन किया कि भाई बताओ क्या करना है, मैं करूँगी. मैंने सब बोला सर 100 किताबें पढ़नी है, मैं पढ़ लूंगी, बस मुझे बता दो क्या पढ़ना है, वैसा. ठीक है, तो एक तो आइडेंटिफाई करिए कि आपको सोर्सेस है. या तो आप बहुत ज्यादा सोर्सेस पढ़ रहे हो, या तो आप मॉक नहीं दे रहे हो, कहीं एक फैक्टर है. ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करो और उस पे काम करो. स्क्रैच से अगर आपने प्रीलिम्स दिया है ना 3 बार, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको 50 to 60% पढ़ा हुआ है. स्क्रैच से अब आप नहीं कर रहे हो, आप 50 to 60% कर चुके हो. अब आप एज ला रहे हो, अब आप कहीं एक एज दे रहे हो. अब वो एज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका डेफिसिट कहाँ है. इज इट टू मेनी सोर्सेस, इज इट नॉट डूइंग करंट अफेयर्स, इज इट अ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आप मॉक्स दे रहे हो. कुछ एक फैक्टर है, उसको आइडेंटिफाई करो और उस पे काम करो. सॉरी, बिकॉज़ 3 अटेम्प्ट देने के बाद it's not scratch, you're already quite ahead, you already know a lot of things. आपको बस वो 40% का गैप फिल करना है और वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यों हो रहा है. ये आपके ऊपर है. I have one more thing. Okay. If I'm not being able to study at home, so what is like Library? conducive environment? लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी होता है. A lot of students का, मैं भी आती थी ऑप्शन में पढ़ने, मेरे घर पे काम चलता होता था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, so I used to come here and we used to sit at 10 in the morning and we used to leave at 6:30 in the evening. At a stretch हम पढ़ रहे होते थे and we had the group also, तो हम डिस्कस भी करते थे. समझ नहीं आता था और बातचीत से ना बहुत कुछ याद रहता है, बहुत याद रहता है. सो प्लीज अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, अगर आपको लगता है आप लेथार्जिक हो जाओगे, कंप्रेसिव हो जाओगे, इशू है, लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज करो. अगर आपका घर बहुत दूर है, आसपास लाइब्रेरी हो, बट मेरा सजेशन रहता है कि यहाँ बैठो, बिकॉज यहाँ पे और 10 स्टूडेंट बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे. तो आप जब उनको देखते हो ना पढ़ते हुए, तो आपके मन में भी आता है कि यार वो पढ़ रहे हैं, उनका तो हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी. तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर होता है. तो लाइब्रेरी और कुछ, जो लोग शांत हैं, बोला ना सिर्फ मेल प्रीलिम्स देने से नहीं होगा, इंटरव्यू भी देना है और बोलना जरूरी है. बताइए, पूछिए कुछ. सारे क्वेश्चंस पूछ लिए ऑलरेडी सबने, कुछ और नहीं बचा है. So you gave different mocks in different institutes. So how different is to face a mock interview and face a real UPSC interview? Because if you go and search YouTube, you'll find numerous mock interviews that are given. So we get an idea. What's the real difference? For me, सबका नहीं होता. देखो डैफ आपको पता है ना होता है. डैफ पता है सबको क्या होता है? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. देखो डैफ एक फॉर्म होता है which is around 17 to 18 pages. ठीक है, अब उसमें आपका पूरा हिस्ट्री लिखा होता है. सो माय नेम, माय एड्रेस, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, प्रोफेशन, माय स्कूलिंग, स्कूल में मैंने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मेरे हॉबीज, सर्टिफिकेट्स, एक्टिविटीज, सब कुछ लिखा होता है. ठीक है, तो उसी से मोरलेस क्वेश्चंस आते हैं और हम डैफ का एक एक वर्ड पढ़ते हैं. तो फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, जैसे मेरा एड्रेस है डायमंड हार्बर रोड. ठीक है, तो मैंने हार्बर को सर्किल किया और मैंने पढ़ा इंडिया में कितने मेजर हार्बर्स हैं, कितने मेजर पोर्ट्स हैं, कितने माइनर पोर्ट्स हैं, कैलकाटा में कौन से हैं, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है. डायमंड को मैंने किया कि भाई किस तरीके के डायमंड होता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होता है, डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ है, इंडिया डायमंड इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है. अभी मान लो एक वो भी आया ना, एक सीपीवी मेथड आता है, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब ये मैं बहुत डिटेल में गई, शायद था जरूरी नहीं बट मैं गई. ठीक है, जैसे मेरा सरनेम खान है. ठीक है, तो अब मैंने पढ़ा कि 3 ऐसे फेमस खान कौन है, जो अगर मुझसे बोलते हैं कि 3 फेमस खान बताओ, राइट, तो मुझे पता होना चाहिए. तो मैंने पढ़ा ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान एक है, तो ऐसे ऐसे करके बिस्मिल्लाह खान एक है. तो उनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ लिया.
ऐसे तो ऑलमोस्ट 200 to 250 पेजेस का मैंने नोट्स बनाया हुआ था अपने इंटरव्यू डैफ के, वो 19 पेज से, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में गई और वो जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे से कुछ नहीं पूछा जी, दे नॉट आस्क एनीथिंग, और मैं वही सोच रही थी कि क्यों नहीं पूछ रहे। तो जैसे मैं कोलकाता से हूँ, तो मुझसे व्हाई इज कोलकाता कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय, डू यू थिंक कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, व्हाई वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। मेरा एंसेस्ट्रल होम यूपी है, तो वेस्ट बंगाल और यूपी का कंपैरिजन करो, सोशल इकोनॉमिक कंपैरिजन। मैंने महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत स्कूलिंग की, तो महाराष्ट्र यूपी वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन करो। महाराष्ट्र में ऐसा क्या है जो वेस्ट बंगाल में नहीं है, वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या है जो महाराष्ट्र में नहीं है। मेरे स्कूल का नाम मैरी इमैक्युलेट है, या मैं सेंट जेवियर्स से हूँ, तो सेंट जेवियर्स कौन है, सेंट जेवियर्स पोर्चुगीज है, तो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो वो आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो हमने बहुत सेशंस किए हैं डैप की, तब जाके वो 250 पेज का बुक बना है, ठीक है। अब क्या चीज है कि अगेन मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, सो इमेजिन माय डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने इतनी मेहनत की और आपने एक तो पूछ लेते, कुछ तो पूछ लेते, कुछ नहीं पूछा। वो गाने और रेलवे और कॉरिडोर में अटके हुए थे। सो जबकि मेरे मॉक्स में रैंडम क्वेश्चंस थे, बट मोर और लेस डैप बेस्ड, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, यू नो ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज मोर और लेस डैप बेस्ड, मतलब 80% डैप से था, 20% रैंडम था, ठीक है। तो मेरे मॉक्स बड़े अच्छे रहे, और जब यूपीएससी वालों को मैंने फेस किया तो कुछ अलग ही केस था वहाँ पे। बट आई थिंक डिफरेंस कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की हमारे मेडिकल के टाइम पे, उनको डैप से पूछा गया, वो बोल रहे कि हमें तो डैप से पूछा गया, अलग बोर्ड था उनका, अलग पैनल था, तो बोले मेरे से तो सब डैप से पूछा गया, मेरे से तो पूरा का पूरा जो मेरा सब्जेक्ट है ऑप्शनल है उसमें पूछा गया, मुझसे ऑप्शनल में कुछ नहीं पूछा गया। पहला क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शनल में पूछा, मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया, पूछा ही नहीं, उनको लग गया कि ऑप्शनल उसको पता है, दे नॉट आस्क मी एनीथिंग। सो ये कोई नहीं बता सकता कि वो मॉक से कितना डिफरेंट होगा, ठीक। वो ये सब नहीं बोलते, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस बॉटल को प्रपोज करो और कितने सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, वॉल का कलर क्या है, वो सब वो नहीं पूछते। पूछेंगे तो बोलो सर नहीं पता क्या है, पीछे मुझे देख के बता दो क्या है, उतना उनको वो सब नहीं देखना है, ठीक है। उनको देखना है जैसे क्वेश्चंस क्या थे कि आप अगर डीएम, तो जैसे मैंने एक एनजीओ में काम किया, बस्ती लोकल कमिटी नाम, बस्ती मतलब क्या होता है, स्लम, ठीक है। तो आप, और ये मैं प्रिपेयर करके गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम बनते हो डीएम, ठीक है, तो तुम स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करोगे। तो मैं तो प्रिपेयर थी, मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। मैंने बोला मैम फर्स्ट आई फाइंड आउट वेदर द स्लम्स आर टेरिबल और नॉट, फिर अगर वो टेरिबल है तो हम उसमें प्रोविजन देंगे, सिविक अमेनिटीज देंगे, और धारावी जैसे स्लम्स को इकोनॉमिक हब है, हम उनको यूटिलाइज करेंगे, एमएसएमई इंडस्ट्री से लिंक करेंगे। तो ऐसे करके मैंने काफी बात की। फिर उन्होंने ओल्ड एज के बारे में पूछा, अगर तुम बनते हो तो आप ये मत सोचो कि मॉक्स अच्छा गया तो यूपीएससी अच्छा जाएगा, यूपीएससी अच्छा गया तो मॉक्स, वो लिंकेज ही नहीं, आपको नहीं पता वो आपसे क्या पूछेंगे, बस वी डोंट एक्सपेक्ट। पहली चीज मैंने सीखी, इसकी एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, आप उम्मीद ही मत करो तो आप शॉक ही नहीं होगे, उम्मीद करके जाओगे तो शॉक हो जाओगे। उम्मीद मत करो और काम करो और ऑनेस्ट, सर नहीं आता, सर आई एम सॉरी मैम, आई विल रीड ऑल्सो, भले 20 बार बोलना पड़े, आई एम सॉरी, बिकॉज उनको पता है ना, वो आपसे वो पूछ ही नहीं रहे हैं जो आपको पता है। अगर वो मानो मेरे डैड से पूछते और तब मैं बोलती कि सर मुझे नहीं आता, तो वो गलत बात है, कि आपको तो पता होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस डायमंड हार्बर है तो आपको डायमंड के बारे में तो पता होना चाहिए, वो मेरी गलती हो जाती। बट आप जब ट्रेन्स और गाड़ी का मेंशन ही नहीं है तो मुझे कहाँ से आए, तो वहाँ क्या बहुत, लेकिन डैप अच्छे से प्रिपेयर करो, वो हम पूरा करेंगे, वो पूरा उसका डिटेल सेशन होता है, हॉबीज में क्या लिखना है, एवरीथिंग, तो उसके टेंशन मत लो, बस वही विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। पूरे यूपीएससी प्रोसेस है ना, कोई एक्सपेक्टेशन रखने वाली, ठीक है पूछ लो जो पूछना है, जो बनना है पूछ लो। मेरा तो ये कि मैं पूछ लूँ, जो गाना वाला ट्रॉफी जो पूछना है पूछ लो, मेरे को आता होगा आई विल से, नहीं आता होगा तो नहीं बता पाऊंगा। आई थिंक वो एक माइंडसेट हेल्प कर जाता है, शॉक नहीं होना है कि ये क्या पूछ लिया, नहीं वो पूछ सकते हैं, उनको परवाह नहीं। मैथ्स में इस टाइम उन्होंने प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा, सीसैट में प्रीलिम्स में मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, जहाँ पे 1 1 1 1 into 1 1 1 1 into 1 1 1 था, मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे नहीं आता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट मैथ्स। मैंने इंग्लिश पे चलाई है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग है।
जहाँ 200 इंटू 250 इंटू 800 है, मैं बैठ के मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो। तो वो चीज़ मैंने सीख लिया कि भाई इनसे उम्मीद मत रखो, क्या मैं उनसे इस सारी ट्रिग्नोमेट्री ले रही है कि बताइए, और मुझे कुछ नहीं पता, राइट। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आप शॉक नहीं होगे, अगर आप शॉक नहीं होगे तो आप अपना फुल माइंड यूज कर पाओगे उस टाइम उस पेपर को डील करने के लिए। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं रखना है। क्या और कुछ लक, ऑनेस्टली लक। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का सीसैट पेपर था और जिस तरीके का मेरा मैथ्स है, मैंने बोल दिया था सबको कि नहीं हो रहा है, सीसैट फेल कर जाऊंगी, जीएस पास हो जाऊंगी, सीसैट नहीं हो रहा है। बट आई डिड स्कोर आई थिंक 5 marks above the cutoff. I don't know what ताकि वन से तीन ही मैनेजमेंट के आपका आपके नाम में रहने से आपको ये पता है। लेकिन होता है बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनाइज ना, और यू नो ना क्या बोलते हैं कि फैक्चुअल होता है कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया यहाँ रहती है, कार इसके है, ये इसके है, यहाँ यहाँ होती है, बहुत बुरे हो जाता है और ठीक करने के बाद उसको नहीं नहीं बनाए। बट जब आप न्यूज़ शुरू करते हो तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट करते हो, तो याद रखना तो लिटिल इजियर, so easy to do that. All the best for your exams after the day, and if you like to know how you should do it. So that was the end of the video, but always a new goal that get you, and you have exceptional members to write. मैंने अपना सब कुछ किया तो एक मौका आपने